That is the indication, huh? Yeah. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा लगता है सर. अब तो बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई आपकी, या पहले भी ऐसी चलती थी फ्रीक्वेंसी? ये इसी फ्रीक्वेंसी है सर हमारी, ओह, वेरी गुड, कंटिन्यू. वेरी गुड, वेरी गुड. एक्चुअली आफ्टर अभी शुरू नहीं है ना? नहीं, होगा अभी. एक्चुअली ना Ladies and आफ्टर दिस gentlemen, we इलनेस absolutely ना believe मैं in the थोड़ा power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting a small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development. Creating industrial insights, inculcating industrial development. Facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions. Enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Karta, Spot, Digital, Womenpreneur and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics, human resource, personnel,
facility, quality and many others. Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes, and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kind of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight, and it will cover topics in different categories like financial management and accounting, marketing, sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc., etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc., etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc., etc. Government policies, support system and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. With this brief about the industry insights, now I request our programs coordinator to take over for introducing today's topic and the speaker. Thank you. मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ, आ आवाज रहा है। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के इंडस्ट्री इंसाइट्स के सीरीज में मैं आप सब लोगों का आज यहाँ पे सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस चैलेंजेस। टॉपिक के पहले जाने से पहले मैं एक बात यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि कोई भी बिजनेस जब हारता है तो बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता है, बल्कि वो अंदर की जो कमजोरियां होती है उससे हारता है। मैं नवनाथ देवकर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, दोबारा आप सब लोगों का आज के सेशन में सहर्ष स्वागत करता हूँ। सो आज के टॉपिक को आगे लेके जाने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर पोपटराव मोहिते एंड मिस्टर अतुल बोराडे सर, जिनके साथ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के जो टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस चैलेंजेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक को आगे लेके जाने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर पोपटराव मोहिते यानी अतुल बोराडे सर का हमारे आज के सेशन में हम लोग स्वागत करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि आप चैट बॉक्स में उनके लिए वेलकम लिखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। प्लीज नोट डाउन द वेलकम टू द मिस्टर डॉक्टर पोपटराव मोहिते एंड मिस्टर अतुल बोराडे सर। ग्रेट। सो चलिए, सबसे पहले हमारे जो सीनियर डायरेक्टर हैं डॉक्टर पोपटराव मोहिते सर, उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। उनका डॉक्टर पोपटराव मोहिते एक सर्टिफाइड बिजनेस मेंटोर है। वो बिहेवियर साइंटिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच एंड लाइफ कोच भी है।
40 साल से अधिक उनका व्यवसाय विकास और व्यवहार क्षेत्रों में योगदान रह चुका है। वो CVU इंटरनेशनल द्वारा व्यवहार विज्ञान में डॉक्टरेट है। उनके पास कॉरपोरेट और बी स्कूल दोनों का समृद्ध अनुभव है। वो US और EDII भारत द्वारा प्रमाणित एंटरप्रेन्योर मेंटर है। वह उद्यमियों और व्यापार सलाहकारों का विकास कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 1 लाख से अधिक युवा उद्यमियों और 1000 से अधिक बिजनेस मेंटर्स को प्रशिक्षित किया है। वो ITC मुंबई और ISTD दिल्ली से अजीव सदस्य है। इसके अलावा वो MRA इनिशिएटिव ऑफ चेंज पांचगनी इंटरनेशनल डायस एशिया के सूत्रधार भी है। डॉक्टर मोहिते अपने ग्राहकों को अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। उसमें से मैं यहाँ पे कुछ सेवाएं यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो है SME स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, कृषि, खाद्य प्रक्रिया और शिक्षा क्षेत्र, कपड़ा और डेयरी उद्योग, सभी प्रकार के यांत्रिकी उत्पादन और ऑटोमोबाइल्स उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, पैकेज और खनिज जल उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में स्कूल से कॉलेज तक, IT उद्योग, वाणिज्य मॉल और आतिथ्य उद्योग, उसके साथ में निर्माण उद्योग और सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, ये सारे क्षेत्रों में डॉक्टर मोहिते अपनी अलग अलग सेवाएं देते हैं। वो सूक्ष्म उद्यमियों से लेकर मध्यम स्तर तक MSME संगठनों के साथ विभिन्न समाधान आधारित सलाह मॉडल पर काम कर रहे हैं, ताकि संगठनों को अपने रणनीति उद्देश्यों को दिन प्रतिदिन के व्यापार और परिचालन लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद मिल सके। उनकी सेवाएं कंपनियों को चक्र समय कम करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और सेवा वितरण प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुधार लाने में बहुत सहायता करते हैं। डॉक्टर मोहिते सर, मैं आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, थैंक यू। इसके साथ में हमारे साथ में आज जुड़े हैं डॉक्टर अतुल बोराडे सर। डॉक्टर अतुल बोराडे सर के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो आज के डेट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वो अधिभू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक भी हैं। अधिभू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कंपनी मुख्य रूप से पूरे विश्व में कृषि प्रसंस्कृत खाद्य और औषधीय हर्बल पादप उत्पादों के निर्यात पर केंद्रित है। इसके साथ में अतुल जी का कई निर्यात और आयात कंपनियों के साथ भारत के साथ साथ विदेशों में निर्माण के साथ में भी सहयोग है। अतुल जी ने 2007 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स पूरा किया है और उसके साथ साथ में फार्मास्यूटिकल डेटाबेस कंपनी में उन्होंने 10 साल से अधिक काम किया है। उनकी विशेषज्ञ पृष्ठभूमि निर्यात और आयात के साथ साथ कृषि, औषधीय, हर्बल पौधों के उत्पादों में अलग अलग तरह से फैली हुई है। मिस्टर अतुल बोराडे सर, आपका भी मैं आज के इस सेशन में स्वागत करना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बिजनेस में चैलेंजेस भी आती है और अपॉर्चुनिटीज भी आती है, और ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज ही हमें बिजनेस को आगे लेके जाती है। सबसे पहले आज जो पैनल डिस्कशन में हम लोगों ने ये टॉपिक लिया है, तो सबसे पहले डॉक्टर पोपटराव मोहिते सर को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहिते सर, बिजनेस में जो चैलेंजेस आती है और जो अपॉर्चुनिटीज आती है, इसको आप किस तौर से देखते हैं? क्या ये विभिन्न कॉन्सेप्ट है या एक दूसरे के साथ पूरक है, या किस तरह से आप इसको देखते हैं और बिजनेस ओनर को किस तरह से आप बताना चाहोगे? Thank you, Navnath ji. I'm very happy that the question which you asked me, that how these basically challenges and opportunities are different or correlated. I will say it is a correlated. When there is a challenge, definitely there is opportunity. When you're talking about challenges, what challenges? Challenges are unpredictable things which are going to happen in our businesses. Then maybe natural pandemic, approach activity,
or maybe certain economical slowdown, or maybe there are number of concerned challenges, financial challenges, labor challenges, then customer challenges, technology challenges. So there are n number of challenges. But we all must think that how we can convert the challenges to opportunities. You see, as a business person, when you want to run your business, these challenges are bound to come by this way or that way. Challenges are going to knock your door because you are a business person. When you are an entrepreneur, you are unaware about the happenings of the market. You are unaware about the happening of basically the future of the business. And here, you and me should understand that what competency is required me as an entrepreneur. And therefore, I say challenges are absolutely opportunity. So whatever challenges today we all are facing, or tomorrow we are going to face, every challenge will have to take into the spirit of opportunity. As we all have seen last 3 years back, we have gone through such a challenging period, but we risen, we bounce back. How? We thought different way. We converted that entire challenges into the new business opportunity, healthcare awareness which we took place, and altogether, when we were thinking about how to survive, but that how to survival made us how to be more quality survival with the sense of well-being, with the sense of new business thought process. And those people who immediately plunge into the new business thought process of healthcare, they did wonderful. And even today, this is what Navnath ji, I want to tell you in that light. Exactly right, sir. जैसे कि आपने बताया कि चुनौतियां और जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक दूसरे को पूरक है। मेरा भी मानना यह है कि जहाँ पे आपके पास चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस में ही हिडन पार्ट होता है आपकी अपॉर्चुनिटीज की। अगर चैलेंजेस आपके बिजनेस में नहीं आएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। सो एग्जैक्टली राइट सर। हम लोग आगे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग से चालू करते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस करना है, तो उसका एक इनिशियल प्रोसेस होता है। कोई भी कंट्री में उसका एक लीगल आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है, राइट? सो हमारे साथ में अतुल जी है। अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चैलेंज होता है कि यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं कैसे स्टार्ट करूं? उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? किस तरह से के अलग अलग टाइप्स होते हैं जहां पे हम लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत बार बिगिनर्स होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है, करना ही तो चाहते हैं, उनके पास आइडियाज भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। सो आप जो हमारे ऑडियंस है उनको क्या बताना चाहेंगे, तो किस तरह से बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए? सो ये बहुत ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमें जब हम सोचते हैं कि चलो बिजनेस करना है, हमें स्टार्ट करना है, तो हमें एक कंपनी चाहिए होती है। अभी हम लोग सोचेंगे कि चलो मुझे अभी बिजनेस आइडिया मेरे पास है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए अभी सोचते हैं चलो प्रोप्राइटरशिप लेंगे, प्राइवेट लिमिटेड लेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अभी मान के चलो कि चलो इसमें से मुझे कौन सा चूज करना है, तो उसके लिए भी अपने पास पैरामीटर्स होने चाहिए। अभी मैं प्रोप्राइटरशिप ही क्यों सिलेक्ट करूं? अब मेरा छोटा कंपनी है, छोटा बिजनेस है, साइज छोटा है, आगे जाके वो एक्सपेंड होने वाला है। अगर हम लोग ये अप्रोच अपने पास आगे का प्लान है और हम लोग बोलेंगे कि चलो मुझे करना तो है, लेकिन मैं ये ट्राई करके देखूंगा, बाद में एक्सपेंशन हो जाएगा, बाद में मैं अलग कंपनी चेंज कर दूंगा, लेकिन वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपको सब ट्रेडमार्क या फिर जो भी आपके नाम से रजिस्ट्रेशन से वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं क्या, वो चेक करना पड़ेगा। आप
आपने जो भी ट्रेडमार्क लिए हैं वो ट्रेडमार्क या फिर जो भी नाम लिए हैं, ब्रांड नेम वगैरह, वो यूज करते आएंगे क्या बाद में? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, लोगों को क्या लगता है प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेशन के लिए कुछ पैसा लगता नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है, चलो मैं प्रोप्राइटरशिप बनाता हूँ। लेकिन आपका बिजनेस का टाइप जो है वो उसको अलाउ करेगा क्या, वो बाद में जाके सस्टेनेबल हो जाएगा क्या? लेकिन सच में उतना ही खर्चा आता है क्या, वो आपने कभी चेक किया है क्या? वो चेक करना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप में एक अलग डायनामिक्स है, एक अलग वहां पे खर्चे है। बाद में वो खर्चे कंपनी के ऑडिट में, बुक्स में कैसे दिखाते हैं, उसका भी एक अलग मैट्रिक्स रहता है। प्राइवेट लिमिटेड लेके जाएंगे, कम से कम 2 पार्टनर चलेंगे आपको, आप एक्सपेंस ज्यादा दिखा सकते हो, बाद में आप सैलरी भी ले सकते हो, डायरेक्टर सैलरी ले सकता है उसमें से, तो आपको वो वहां पे थोड़ा सा टैक्सेशन में इजी हो जाता है। तो मेरा एक मानना है, आप अगर कंपनी फॉर्मेशन में चाहते हो तो आप कम से कम प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड, जो भी कंपनी है आपकी, कम से कम इस सब के मैट्रिक्स डालो, उसमें लिखो कि इसके मुझे फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और फिर जाके चॉइस करो। जो इजी लग रहा है और जिसको कम खर्चा आ रहा है वो मत चॉइस करो, जिसका फायदा है वो चॉइस करो। सो बेसिकली मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। हमेशा लोग पीछे भागते हैं, इसके लिए कम पैसा लग रहा है तो चलो मेरा पैन कार्ड पे काम चलता है, मैं वो ले लेता हूँ, प्रोप्राइटरशिप ले लेता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके वो सोचो, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बात सही आपने कही। हमारे साथ में शंतनु रास्ते सर है। शंतनु रास्ते सर, मैं आपसे भी सेम सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब लोग प्रोप्राइटरी बिजनेस में आते हैं और उसके बाद में उसको मूव करना है अलग टाइप ऑफ बिजनेस में, तो क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको क्या लगता है? सी चैलेंजेस, जब बिजनेस चालू होता है चैलेंजेस उसके साथ ही चलता है हमेशा। मतलब जिसमें एक तो अपने को ये देखना है कि कुछ भी हो जाए बिजनेस में अपने को पूरा नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट आपको, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो आगे जाके मुझे कुछ चैलेंजेस अगर फेस भी हो रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस आपको पहले से ही ध्यान में रखने चाहिए। एक सेफ्टी के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली जैसे अभी अतुल सर बोले कि कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्ट लाइसेंस हो गया, बिकॉज आई मीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो जीएमपी हो गया, एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, अराउंड 10 से 12 ऑफिशियल्स हमारे, अगर फैक्ट्री चालू करना है तो 10 से 12 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से आपका पाला पड़ता है। मैं पाला पड़ता है मतलब यू हैव टू हैंडल देम। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपडेशन अमेंडमेंट रहती है। सो उस पे आपको बार बार फोकस करना पड़ता है। एंड बिकॉज इन एनी वे आपको मार्केट में अगर कुछ भी प्रोडक्ट लाना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं घर में बनाऊंगा और विदाउट लाइसेंस में मेरा प्रोडक्ट डालूंगा, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्मॉल थॉट प्रोसेस। आपको बड़े पैमाने पे सोचना है तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। और चैलेंजेस तभी नहीं आएंगे जब आप प्रोफेशनली उसको हैंडल करेंगे आपके बिजनेस। ग्रेट ग्रेट, काफी अच्छी सोच आपने यहाँ पे दी है। डॉक्टर मोहिते सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ और स्पेसिफिकली आपको मैं 40 साल पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। आपने जब 40 साल पहले कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया था तो उस टाइम पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? 40 साल पहले मतलब आज नया 2022 है। आपने आपका करियर ऑलमोस्ट 1980 के दशक में चालू किया, तो उस टाइम पे आज की टेक्नोलॉजी और उस दिन की टेक्नोलॉजी डिफरेंट था। आज का एजुकेशन सिस्टम और उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे वेरिएशन थे। आज बिजनेस करने की स्टाइल, बिजनेस करने वाले लोग और उस टाइम के बिजनेस करने वाले लोग, ये कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन थी, दुनिया अलग थी।
मैं तो ये मानना चाहूंगा, मैं तो ये मानता हूं कि 40 साल में दुनिया पूरी बदल गई है। तो जब आपने आपका करियर स्टार्ट किया था 40 साल पहले, उस टाइम पे आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? Thank you very much. Very nice question you have basically posed, because the question which I'm answering is nothing but I'm experienced and I'm eyewitness for changes. The changes took place after 1980 onwards. Drastic changes take place. Where I started working in corporate, that time there was no computer. But when computer come to your company, it was a huge computer, at least one big room, it may be 20 by 20 room was required for that particular computer station. And then data operator was there. First, long back, if you remember, data operator, that punching was there. So the punching cards were there, where their punching and their coding was there through punching. So it was a very, very challenging thought process when computer entered. And when computer entered, that time we were worried. What about our jobs? And when I witnessed, actually computer blessed us. Computer basically given us a new opportunity for developing our personality as a corporate person. And we started immediately learning the things. We immediately adopted, because typewriter has gone and immediately computer has started working. Before that, in between, electronical typewriter was there. Electrical support was there. Through that, we were used to work. But now computer arrived. But big, huge box in front of us where we have to put our eyes. But that was also eye affecting. So challenges were there with the health also. Challenges were basically to continue the new technology. And the technology, which is really beyond our thought. And we were worried what would happen. But those who basically, like me, adapted. Adaptability is a very important part and parcel of our personality if you want to change and if you want to go with the change. Because change is inevitable. And we have to with the change. And through that, then I saw from that computer to my palm computer, that is mobile, the transformation has taken place in such a way. When I was delivering my coaching, mentoring in my company, that time, I was used to LCD projector. Now everything has gone. Now everything has come with a different dimension. And we started making all type of concern presentation. That was a projector where we have to put our pencils and we have to show the things in that way. So you have to work hard. So for preparation for the 4 hours training, we used to work for 18 hours. Documentation, then preparation, graphic. Our designer used to sit with us. What kind of basically design is to be there to reflect them. But today, as I have seen that, the drastic change within a moment, everything is available. So this is what, Navnathji, the change which I found, and I'm an eyewitness. My generation is eyewitness. So majority people, even Shantanu is in that, I can say, in the same phase of experience. You little bit younger, you both, Navnatha and Natul. But yes, we both have basic experience, and I'm very happy that yes, we are in a change, and we are bringing a change in that line. Thank you very much, Navnath. Excellent, sir, excellent. काफी अच्छा लगा ये बातें सुन के कि इस तरह के चैलेंजेस उस टाइम पे थे। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो चैलेंजेस अभी आपने बताए हैं, उसको आपने अडॉप्ट किया, इसको अपने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया उस टाइम पे, और उस अपॉर्चुनिटी का आपके करियर में कैसे बेनिफिट्स हुए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखो, जब कोई चेंज आता है, और मेरा एक नेचर है, फंडामेंटल नेचर है मेरा, हर दिन मैं नया सीखता हूँ, और ये हर दिन नया सीखने का जो मेरा प्रयास होता है, whenever I learn every time new things. So the person who learns new things every day, for him it is nothing. So like me, those who were there and we were
happy to do that altogether and happy to accept the new changes there, I immediately started transforming myself and I asked my management, yes, I want to do this, I want to do that all. So entirely everyone got shocked. They said, hey, why you are taking a challenge? Because people scare, what is the mentality of human being? Resistance. Resistance is a human mentality. But I'm an exceptional case. What I did, I accepted it. I said, okay, give it to me. So what happened? That converted and that made me techno-savvy. So I used to see it a lot of time. Even I was controlling a telecommunication department. And in telecommunication department also, a great change. Earlier, wire used to put by a telephone operator. Now everything come with the electronical sales and all that. So transformation in especially telecommunication, when took place, I am the witness of that altogether, where my operators used to see it or has to have the particular plugging the huge cord, putting into that way, connecting all together. But today, when we started bringing I am the basic listen, I travel with the change and I'm traveling with the change. So altogether, we made an entire upgrade because I was looking for that activity. So I'm fortunate because I'm into this particular, change of telecommunication, change in computer, change in technological perspective. And that our industry was specifically for government PSL design, the satellite which we are, used to see today, the Agniban we call for that. That is prepared by that company. That is a very special work was taking place. That was high technology. That is a great technology in that time in that industry, and nowhere in the country, but only that country, our basically the industry had. So, friend, we are living with the change. Even we live with the whatever you say, the space, space activity. I am the witness of the space activity. I'm very fortunate to tell all of you. This is a great opportunity to guys. The scientists who work with Abdul Kalam ji, they were working with me in that industry. So I have seen the change in the space flight and all together. So this was a great change made me today. And because of that altogether, I'm working internationally. I'm connecting with the people very nicely. So thinking with that positive aspect, I made that all together with a beautiful sense and making everyday change in me. So that is the benefit of that way I can say, Navnath ji, and that what change bring me and change is bringing me further in that line of understanding. Thank you very much. Oh, great sir, great. इसी वजह से आज आप यहाँ पे हैं, सब लोगों को मेंटोरिंग कर रहे हैं, सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आपने अपना जर्नी आगे आप लेके आए और 40 साल के बाद आप ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा लोगों को मेंटोरिंग दे चुके हैं. सो ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर यू सर. मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक इंटेंशनली हम लोगों ने ये लिया है कि बिजनेस के चैलेंजेस और उसके अपॉर्चुनिटीज. हर एक बिजनेस उसका एक दिन का बिजनेस हो या उसका 200 साल का बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में या हर एक व्यक्ति के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आती है और चैलेंजेस भी आता है. सो आज हम लोग स्पेसिफिकली जो हमारे पैनलिस्ट है उनके जो करियर के एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बात करने वाले हैं और आगे जाके ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के ऊपर क्या क्या किस तरह से हम लोगों को डील करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है. जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 40 साल पहला जो पीरियड था वो पीरियड अलग था. एवरी 5 साल के बाद बहुत सारे चेंजेस इंडस्ट्रीज में आते हैं. उसी तरह से हमारे साथ आज संतोष रास्ते सर है. उन्होंने जब करियर चालू किया था तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ये मैं उनको पूछना चाहता हूँ और उस चैलेंज को उन्होंने अपने कैसे ओवरकम करके उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके आपका करियर आगे लेके जाए आगे लेके आए. तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मुझे लग रहा है चैलेंजेस जब भी कोई फर्स्ट एंटरप्रेन्योर होता है तो उसको ना बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. मैं चैलेंजेस से शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज उसको उस वक्त ये चैलेंज है ये भी मालूम नहीं होता बहुत बार, क्योंकि बहुत बार वो सोचता है कि इजी है सब, बट इट इज नॉट इजी. समटाइम्स देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड यू हैव टू पास ऑन दैट. बट एक चीज होती है कि आपको उससे
बाहर आना पड़ता है। एक कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि अगर मुझे ये करना है, ये बिजनेस चालू करना है, तो मुझे ये थ्रू आउट लॉन्ग टर्म में करना है, और उसके लिए जो जो मुझे माइंडसेट में लाना है वो उसके ऊपर काम करके स्ट्रगल करना है और हार्ड वर्क करना है। बिकॉज हमने जब हमारा बिजनेस चालू किया तो हम वी आर द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, तो बहुत सारी चीजें रहती है। फैक्ट्री अगर आपको चालू करनी है तो चैलेंजेस आते हैं, फैक्ट्री किधर लेनी है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको का तो उसके थ्रू अपने को ये फैक्ट्री कैसे खरीदनी है। बट उसमें ना इंफॉर्मेशन, जैसे अभी मोहिते सर बोले कि इंफॉर्मेशन ये बहुत मायने रखता है। उस वक्त थोड़ा कम था बिकॉज इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर ज्यादा इतना एक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो इंफॉर्मेशन हमें जाके लेनी पड़ती थी। हर बार आपको मतलब गूगल में जाओ, अभी आपको सब इंफॉर्मेशन सामने दिखती है, वैसे उस वक्त नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। तो हर एक जन को पर्सनली हर जगह जाके आपको वो इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी। जैसे अभी अगर फैक्ट्री लेनी है तो हमने सोचा कि मैंने जब फैक्ट्री देखी तो मुझे लिटरली देयर इज नथिंग, 4 वॉल थे और एमआईडीसी में, तो हमने सोचा कि अभी ये इंफॉर्मेशन किधर मिल सकती है। सो देयर यूर व्हाट यू कॉल्ड एज चैलेंज स्टार्ट्स। एकदम मैं बोला ना कि वो लो लेवल से ही आपका चैलेंज चालू होता है, बट उसको चैलेंज नहीं पकड़ते हुए हमने माइंडसेट में ये देखा कि ओके ये इंफॉर्मेशन किधर मिल सकती है, एमआईडीसी ऑफिस में मिल सकती है। ये एमआईडीसी ऑफिस में पता चलता है कि ये प्लॉट किसका है, क्या है। सो ये चीजें आपको उधर से ही चालू होती है। सो दीज आर ऑल चैलेंजेस आर इजी व्हेन यू वर्क प्रॉपरली ऑन दैट चैलेंज at the proper time with the proper people and with your proper knowledge. I think challenge will definitely reduce. Definitely reduce. It will not a challenge then, it is an opportunity for you. Thank you. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारे साथ में हैदराबाद से सुचेता आचार्य जी है पार्टिसिपेंट्स। सुचेता आचार्य जी, आप अनम्यूट कीजिए। या हेलो सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती हूँ, तो मैं बात डेफिनेटली कर सकती हूँ। हाँ जी सर। पार्टिसिपेंट में से हमारे साथ में प्रणव दोषी सर है। प्रणव दोषी सर, मैं आपको भी सेम सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने आपका बिजनेस चालू किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था, उसको आपने ओवरकम कैसे किया, और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्जन आपको लेके आके आपने आपके बिजनेस को कैसे आगे लेके आ गए? सवाल बहुत बढ़िया है। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस यस, आवाज आ रहा है सर। इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस चालू करता है तो एक अपने अंदर एक जोश रहता है, जुनून रहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड जब प्लेटफॉर्म पे आता है तब पता चलता है कि भाई गाड़ी तो काफ़ी दूर है। तो वहाँ पे चैलेंजेस ये आता है क्योंकि वो स्वॉट एनालिसिस नहीं हुआ होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एंड बहुत बार ये भी होता है कि लोगों को वीकनेस इसको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी जगह पे स्ट्रेंथ में ही अपने को आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने जब चालू किया था तो मुझे बस ये था कि मुझे चालू करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं था। एक दिमाग में एक थॉट था और वो थॉट को मैंने फॉलो किया था कि मैं करूँगा, हो जाएगा करके। तो अकॉर्डिंगली मैंने चालू किया था। आई एम बेसिकली साइंस फील्ड से बैकग्राउंड में हूँ। मैंने जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था, मुझे अकाउंटिंग का ए नहीं आता था। और जब मैंने चालू किया तो मैं बोला यार बिल भी बना के देना पड़ेगा कस्टमर को, कैसे करेंगे करके। तो ये बहुत लेमैन जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है। तो वो एक्सेल में फॉर्मेट बनाया, उसके हिसाब से फिर हम लोग बिल बना के देते थे। फिर बोला कि यार अभी तो वैट आ गया, तो वैट में अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा। बट ये था कि नहीं, जो भी करूँगा खुद से करूँगा। तो ऑनलाइन सब सर्च किया, उसमें से वैट का एप्लीकेशन किया, सर्विस टैक्स का एप्लीकेशन किया, सब खुद ही भरा और खुद ही नंबर लेके आया। जब डिपार्टमेंट में गया तो बोला आपका सीए कौन है? बोला भाई मेरा कोई सीए है ही नहीं अभी तक। तो ये सारा सीखने को भी मिला। एक तरीके से क्या होता है कि नया बिजनेस चालू करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार सीए को दे दो, कर लेते हैं करके। बट कई बार खुद से करने में भी अपने को पता चलता है कि क्या क्या चैलेंजेस उसमें है, कितनी बार जाना पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो सारा चीज खुद से करने का एक जो जॉब से खास करके जो लोग बिजनेस में आते हैं उन लोगों को ये रहता है कि नहीं खुद से ही करो करके, खुद करेंगे बाद में आगे रेप्लिकेट करेंगे करके। तो ये बिजनेस चैलेंजेस रहती है शुरू में,
और उसको एक ही बात है कि उसको चैलेंज के हिसाब से नहीं लेना है। जैसे बिजनेस में भी वही होता है कि कोई भी कस्टमर का सपोर्ट के लिए कॉल आता है तो लोगों को ये लगता है यार ये वापस सपोर्ट मांगेगा, 2-4 घंटा मेरा जाएगा इसको सपोर्ट देने में। लेकिन वहां से ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी निकलती है कि कस्टमर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उसको समझने का मौका मिलता है, उसका और क्या क्या पेन एरियाज है वो समझने का मौका मिलता है, और वहां से ही कुछ ना कुछ और हम लोग उसको बेच के निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चैलेंजेस तो एवरी टाइम आती रहेगी, चाहे आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में 10-20 साल 25 साल के बाद में भी हो। तो वही है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना आना चाहिए। दैट इज माय मेन एरा टू टेल। ग्रेट ग्रेट प्रणव जी, काफी अच्छा शेयरिंग आपका हो चुका है। आगे जाने से पहले मैं भी थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन मैं पुणे में आया था। उस दिन मुझे एक बात भी करनी नहीं आती थी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरा करियर 1999 में स्टार्ट किया था, और जब करियर स्टार्ट किया, पुणे में आया, मुझे बातें ही करनी नहीं आती थी। मेरा बैकग्राउंड रूरल एरिया से है, मेरा नेटिव प्लेस जुन्नर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र से है। सो अगर मैं किसी के साथ बात ही नहीं कर पाता था तो मुझे मेरे पास क्या है वो ही मैं किसी के पास डिलीवर नहीं कर पाता था। मेरा सबसे पहला जॉब था आजकानंद संध्यानंद, उसके माननीय संपादक जी है आनंद जी अग्रवाल साहब, उनके पास मैं इंटरव्यू के लिए गया था। वो सवाल पे सवाल पूछ रहे थे और मेरे पास आंसर ही नहीं था। और अगर मैं क्या हूं, मुझे क्या आता है, यही अगर मैं किसी को बताना नहीं सकता तो मैं मेरी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल एक बड़ा जीरो था मेरे पास। सामने से क्वेश्चन आ रहे, इंटरव्यू खत्म हो गया, तब भी मैंने एक ही सवाल का आंसर नहीं दिया। इंटरव्यू के लास्ट में उन्होंने बताया, भाई तू क्या करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ आता है या नहीं आता है तुझे। तब भी उन्होंने मुझे जॉब का अपॉर्चुनिटीज दिया, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि नवनाथ, अगर दुनिया में आपको कुछ अच्छा काम करना है तो आपको बातें करना आना चाहिए। अगर आप बातें नहीं कर सकते हो तो जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, आप एक बड़ा जीरो बन के रह जाओगे। और उसी दिन से मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार हम लोग किस तरह से अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं। उन्होंने 6 महीने के टाइम में, 1 साल के टेन्योर में उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे बातें करना सिखाया, काम करना सिखाया। उनके साथ काम करके बहुत कुछ मिला मुझे, और आज मैं दुनिया के कौन से भी आदमी के साथ कौन से भी टाइम पे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने देखा था कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको मुझे ओवरकम करना है लाइफ में और आगे जाना है। तो वो जो चैलेंज था वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, और उसी अपॉर्चुनिटी ने आज मुझे बनाया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हर एक बिजनेस ओनर की एक जर्नी होती है जहां से उसकी स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होने के बाद अप टू लाइफ डे टू डे बेसिस पे उसके पास कुछ ना कुछ चैलेंज आता है। उस चैलेंज को चैलेंज ना समझ के उसको अगर हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी अगर समझा तो डेफिनेटली सक्सेस हमारे पीछे आएगा। सो चलिए आगे जाते हैं हम लोग। डॉक्टर मोहिते सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसी सब्जेक्ट के ओर से। जब हमारे पास चैलेंजेस होते हैं तो उसके चैलेंजेस को सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें क्यों देखना है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सही सवाल है आपका। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड राइट क्वेश्चन अगेन। पॉजिटिव एटीट्यूड। People say that
when problems comes, be positive. Saying is very easy, but acting, working, demonstrating with that particular place is really challenging. And here, positive mindset is always the fundamental of success. If you see, even I quote my personal story. When I look to me, I had since my birth, I have a physical deformity. So I never thought in my life that how I can work like other people. And that time, I always thought what I can do the best. My father told me, be a master, whatever you want to do in the life. Then I said, people used to, laugh because in the child period, in those days, दिव्यांगों के लिए and handicapped लोगों के लिए कोई जैसी व्यवस्था नहीं थी. No special attention was there. It was a general. Then what I started? I become myself as a motivation. I made myself as a motivator. And what I done? I made myself, I'm a very strong. I told my father, yes, I will do that the best where I will number one. So I started speaking English in the 7th standard, where I was in Marathi standard that time. My teachers scolded me, you're speaking wrong English. I said, yes, sir, but I want to talk. See, I was very positive and I'm very fortunate. I had a very good teacher, Mrs. Ranade. Now she is no more in the world. She had been from South Africa and she was teaching me. So my teachers who made me today because of that, and they always motivate me because I'm in sports also. Being I'm handicapped, I always used to be first and second in an open category. Means that is a very healthy people. So I'm athlete. So why this positive mindset is required in the business? When I started my business, I never thought of anything that I will fail, because the word failure, negativity, which never enter in my mind, because I have seen myself and I know that I can do it. So I can do it. The whether you can mean whatever Shivakera has written, but before that, I started living my life with my own concern principle that I can do it. And friend, in business, if you say that I can do it, as rightly Pranav has very nicely put, he thought. He was not knowing about account, but he did what? He searched. So every individual, when he's a positive, he gets a ways, he gets new directions, new thoughts. If you're positive, you are not blocked. And in business person, when he's a negative, he's totally blocked. So why we have to be positive in the business? Because our mind parachute should open, and positivity open our mind parachute. And then you can land anywhere safely, correctly, with a new thought process. Because everyone is having a challenge. Those who are today on the platform, they might have gone with a number of challenges. Those people are thinking some new to do altogether. Every person in business perspective, I say, if you're taken that basically call, then reach to the final level. Don't give up. If you give up, that is not good. So positive mind always take you to the destination. And negative mindset kills you, made you to give up you, and you know where. Then frustration, depression comes in that line. But positive mindset never brings any kind of depression. If you have observed me, I always laugh, I always smile, because that is what the gift, that positivity is, bariye mere mein. Whenever I write in the morning and I spread my message, what I give that message is my own personal creativity. I think something and I bring with that positive story. So whatever that it comes to you guys, when you read in the morning, that is my positivity. And when that is a gratitude. Positivity gives birth to the gratitude. And these all people forget the positivity. Positivity is not only keeping positive mindset, but acting with that positive and making with that positive, the environment becomes more vibrant, more positive. So people gets you. And this is the universe. And you know that in universe, whatever you speak, it comes back. It bounces back.
So, my friend, Mr. Navna, I would like to tell you that we must be positive. Whatever that, forget about that way. We can success in that. This is what my experience towards positivity. As a business person, you must. You never say that. Never say no to yourself when you wake up from the bed. And when you go to the bed, say that I can do it for tomorrow because that is for me. And this is what number of entrepreneurs, number of business people scare, fear, and therefore they think, they just go somewhere. They derail from their thought process, and therefore they don't success. It is not a philosophy; it's a practical. Then there are highly, very knowledgeable people, very talented people, well-skilled people. Non-positive attitude make them away from their progress. That is what I have seen closely. Talented, boys in my class today, they are only simple worker. But today, I'm an average student of the class. Today, I'm internationally working. So this happened, friend. So positivity is very important. So over to you, Navnaj. Great. पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेनेशन किया है सर। इसके आगे जाके मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, जब हम लोग कुछ चुनौतियां हमारे साथ में होती है व्यवसाय में, तो उसको हम लोगों को ओवरकम करना है, उसको कम करना है, या उसको पूरे के पूरे निकाल देना है। मतलब जब आपकी पास जो भी चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को कम करने के बाद जब वो खत्म होता है, बराबर है, ये जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस में फोकस का वैल्यू क्या है? Okay. I mean, Very what are important. values for the focus in the challenges overcome process? Very well. If you are positive, you remain focused one. And what is focused one? You know your target, you know your mission and vision. And every entrepreneur must have his vision, mission with his proper objective. When he must know his goals. And focus is nothing. For example, if you have meet with your customer, the customer's today's demand is totally different. Customer wants new facilities. Customer is now well aware of his concern services. He wants value. Are we adding a value in it? When we're talking about this all, so what is my basically the focus? Am I focusing on my customers' future needs through my services, through my trading, through my product? If I am yes, then yes, you are perfect. You are a well-focused entrepreneur. But if you don't maintain the quality, then sorry, your customer will not be happy with you and they will be away from you. Because there are a number of people, competitors of the same product in the market, which they are aware and they know that if we do single mistake, we are going to throw from the market. So today, the survival of the fittest is the focus. And focus is not something to just get to the focus. It is not a theory. To remain focused one in business is nothing but 360-degree awakening, awareness of our individual, with our process, with our business, with the happenings area, political, social. These all we have to have the proper eyesight. So focus is not only target of the achieving the market. Sorry, there are a number of things which you and me should basically work with that. So we must create our good rapport. We must focus on our rapport. You see, when you are creating your brand. So what is a brand? Brand is nothing but the focused activity by your consistency of the rapport in the market. How you are basically dealing in that life. And that impact in your industry, in your business, then you are able to retain your employees in appropriate manner. It is not something that I have focused something and I am getting. If you well focused, your employee also get focused because owner is a focused. When an owner is a focus, his employees also get focused. So the visionary thought process must be with every business person, business personality. And then yes, you are going to have your brand. And yes, you can capture the market. Capturing market is very easy thing.
if you're honest with your quality, if you're well, and these all required focus. Focus not only, different dimension that one must be target oriented. What target? Target is not what normally basically asked in corporate. For business people, focus means awakening and awareness happenings with his businesses, personal life, social life. He has to have the proper work-life balance. Therefore, I say, a good example, Sucheta is here. Sucheta is a very wonderful personality who is basically balancing family. When I had met her at Hyderabad and we interacted with her husband also, I found that how she is well focused with the kids' development. She is caring her kids in such a way, though she is a professional person, she is an entrepreneur, but she is well focused. I'm sure. This is what every individual required. What is my role? What is my responsibility? And it should be well focused, right? Responsibility. Not for the sake of that I am well focused. Sorry. I hope that the dimension which I put in front of you rightly, I am sure that guys, you may be getting now what focus means. It is not written in the book. It is written in the book of experience of Dr. Mohite. Nothing more than that way. That is what I feel personally. So I'm sure, Shantanu, by this way, what you feel personally, while focusing on that line, because recently you had been to Dubai and all elsewhere. And what is your experience when you really made yourself with the focus activity when you was in Dubai? Yeah, over to you. Unmute yourself. Yeah, great sir, great. अपने फोकस के बारे में काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि यस आई एम आल्सो एग्री विथ यू कि नॉट ओनली इन द चैलेंजेस केस, कोई भी केस में अगर आपका फोकस डाइवर्ट्स होता है तो आप आपके एम से बहुत दूर चले जाते हो। अगर आपको आपका एम को अचीव करना है तो आपको उसके ऊपर फोकस रखना ही चाहिए, और फोकस रखेंगे, सही तरह से सही डायरेक्शन में आप जाओगे तो डेफिनेटली आप आपके एम तक पहुंचोगे, आपको आपका गोल मिलेगा। सो इट्स अ ग्रेट डिस्कशन एंड ग्रेट थॉट सर। सो हमारे साथ में सुचेता आचार्य जी है जो हैदराबाद से है। मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, जब आपने आपका बिजनेस चालू किया था एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर्स, आपके सामने क्या सबसे बड़ा चैलेंज था? सर, सबसे पहले तो थैंक यू पोपटराव सर को कि उन्होंने मेरा उल्लेख किया और काफी पॉजिटिव वर्ड्स में उल्लेख किया। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी फैमिली। मेरे हस्बैंड एक्चुअली बाहर रहते थे और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी मदर इन लॉ की और मेरे बच्चों की। बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, 5-7 years old kids, and mother-in-law was sick. So there was no chance that I could give all my attention to my business. But then that was also a kind of survival kind of thing in me. If I wouldn't have started that business that time, I would have gone through the depression and bringing down my kids also. So I took 1 hour of time which I got when my mother-in-law used to sleep and my kids used to go to the school. That 1 hour I took the entire hour I put like Popat also said, put the focus completely, and I utilized that 1 hour completely in my business. For 3 years I worked like that, and 2017 business after and today we are standing at much higher position. And even today I have to be at home by 3:30 at any cost, because it's a time when kids come home and I make sure that I pick up them from the school myself. And मुझे मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। मैं मदर सबसे पहले हूँ, उसके बाद में बिजनेस वूमन हूँ, या उसके बाद में प्रोफेशनल हूँ। मैं आई एम हाईली क्वालिफाइड। आई वाज द फर्स्ट इंजीनियर इन माय फैमिली एक्चुअली, मतलब कजन्स में दूर तक आई एम द फर्स्ट इंजीनियर। पूरा स्कूल से लेके कंप्लीटली मेरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे हुई, एंड आई एम द ओनली वन इन द फैमिली लाइक दैट।
I'm the first one to do MBA in my family. I mean, female ladies, both the sides of the family. And I was working as a professor at Shekhar Engineering College, which was kind of an accredited college that time. And I was on UGC scale. वो मेरी शादी होने के बाद मुझे इतना अच्छा जॉब छोड़ के आना पड़ा था, and I thought I'll always pursue my career, but then it's not that always whatever you think comes true in life. So I had to take breaks, a lot of breaks. In fact, my husband like continued with his career, and I allowed that also because he was also very highly qualified person in his family, and he was the only qualified person in his family. I never wanted to, make him feel as I was feeling in my taking a lack in my career. So I asked him to continue, whereas I'll take the responsibility of the family. But मैंने ये कभी realize नहीं किया कि मैं ये बोल के मैं depression में जाने के chances रहेंगे करके. So I took the complete advantage of that one particular hour. I utilized it completely. 2017 में मैंने US में participate किया था एक exhibition में, putting both my daughters at my parents' home and asking my husband to stay at home with my mother-in-law. 1 week gap I have taken off. I have taken vacancy. I have taken from the family, and I utilized that 1 week time also to the fullest. Actually, I got few of the buyers coming back from US and visiting my facility. They provided us some advances, and then that's how I started. After pandemic, actually, we were as low as minus 50 lakhs. So we were completely down. The factory was shut down and everything and that time, actually, my husband never knew that I was doing such kind of business. So when he started, he was like observing me, talking to the people over the Zoom meetings and, discussing the things. And then he asked, what are you doing actually? That time I told him, this is what I am doing and this is what my business is all about, because he was never there at home. So then he's told me to bring in some changes in the business, and I took his word and started doing the business in a better manner. Today, we are standing at a much higher level and doing a lot of good things for the women entrepreneurs as well as women and whom I employ actually. So that's how I stand to even today. I take care of my kids. My mother-in-law is no more. She passed away 3-4 months back. But even today, I take care of my kids and I stand tall as a woman entrepreneur. Fantastic, fantastic. So nice of you, Suchita, the way you have put the thought process. I'm sure that you are a living example to other women entrepreneurs to lead ahead further, I can say. Yeah, Shantanuji, just I had you question in between, and that question was about that how you both your wife and you are carrying the business. So what challenges you are facing during the partnership as a husband and wife in the home and a husband and wife in the business? Over to you. It's a very tricky question rather, because when husband and wife are the partners in the business, doesn't matter what the thought process is all about, whether she is having one opinion, I have my another, but in any way we have to come together in any way. We have to find out the middle, what we call as the solution for that, and that is the key success in our business. Because if the partners are different, that might be possible that they will separate, or then lot of examples are there. The partner don't initially they come together, and after some maybe 10 years they will segregate it. So I think. In our case, it is not possible. So that is the advantage rather, when husband and wife is in the same business. But I think, Mohita sir, you are absolutely right, because you are telling the जो बोलते हैं ना कि एक जुनून होना चाहिए बिजनेस में, और अगर आपके पास जुनून है तो ही आपको सुकून मिलता है. That is what is all about. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि बिजनेस इज लाइक अ फुटबॉल मैच.
because you have a goal over there. You have to work hard to what we call as achieve the goals, and a lot of competitors are another players which obstruct you to fulfill your goals. So you have to adjust. You have to run fast. You have to towards your goal by not giving any opportunity to other player or in the market to obstruct you, and you have to in the right direction, brother, because that is very, very important. So I feel that every businessman is having a proper direction with the proper goal, with the proper people, and he should grab the market in with the right people, brother. Means whatever the surroundings he have, it should be with the right people who can help him in the right time, and he should also help the other people also. And now we are doing on the networking, we are helping all the people, because now because of internet the world is very small. It is not it is not round now. It is a flat. It is like screen. The world is now flat, and you are anywhere at any time. You can approach anybody within no fraction of second. So that is the advantage, rather, of the technology. So I think focus is very important in the business, but right focus in the positive way, not negative way. It is much necessary in any business. Thank you. So this is the secret of your success of your business with your wife. Yeah, it is my success, because my same business with the wife is that is not my business. Anywhere you see same business, husband and wife, they cannot get separated because the business is same. And see, we are now, she is Ayurvedic doctor, I am in marketing, so we separate our work. I always feel I'm not very habitual of some of the activities what she is doing. She is handling R&D, she is handling, because she is Ayurvedic doctor, so she knows how to handle R&D, production, formulation. I know a little bit about marketing. I'm not telling I know each and everything, but whatever you know, at least you 10%, 20%, in that also you should know 100%. I'm always feel that if you know 20%, but in that 20% you should know 100%. So that is what I feel. And जैसे बोलते हैं ना, एक जन ने मुझे अच्छा बोला था कि वो इंटरव्यू में गया और उसने पूछा कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट उसको क्वेश्चन देना नहीं आया, तो उसने उसको सिलेक्ट कर दिया. तो वो भी हैरान हो गया कि हाउ यू कैन सिलेक्ट मी, बिकॉज वो बोला कि आपको क्या नहीं आता है ये आपको मालूम है ना, दैट इज व्हाई आई सिलेक्ट यू. So that is very important. Thank you. So through your story, that all our partner, those are people here as a members and listening today, understood that there should be work delegation. Rightly, you have made all together. What is your strength? What is your wife's strength? So in the business, we must able to segregate ourselves with our strengths, and this is very, very important in partnership, or the people who are basically working with the people. Those, okay, we have to understand their strength, and that is beautiful thing. Is a right example of Shantanu, you and your wife. I really, everyone will understand. Challenges comes when there is no proper tuning. When tuning is there, no challenges. So getting tuning well and tune with the happenings is the fundamental thought of the businesses, and altogether the converting the challenges. So altogether towards the opportunity. Yes, Navnath ji, over to you. ग्रेट. सो काफी अच्छा हमारा डिस्कशन हो रहा है, किस तरह से चैलेंजेस आते हैं, किस हम लोग उसको किस तरह से ओवरकम, हर एक के एक्सपीरियंस में से हम लोग यहाँ पे समझ के ले रहे हैं. अभी मैं अतुल बोराडे सर आपके पास आना चाहता हूँ. आप सब लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेस हो तो उसमें एक कॉमन चैलेंज होता है, वो होता है मनी 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 एंड मनी. अब ये जो मनी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे अतुल सर? सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से जो भी अपने पास फंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है. इट इज टोटली 100% इन आवर कंट्रोल. व्हाटएवर वी आर, अपने पास जो भी एक्सपेंस है कंपनी को लेके, उसमें से छोटा से छोटा एक्सपेंस भी मॉनिटर करो. सेविंग जितना ज्यादा करोगे, इट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अगर मैं if I'm managing and if I'm the owner, so I can go and look into each and everything. It is practically not possible, but still you have to monitor the smallest thing, which is adding saving to your money, और वो आपका एक प्रॉफिट बन जाता है। दूसरा, आप अगर फंडिंग खड़ा करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से फंडिंग आनी चाहिए, आपको सोर्सेस पता होना चाहिए। अभी मोहिते सर यहाँ पे है, हमें वो लोग भी पता होने चाहिए कि जो मास्टर्स है इस फील्ड में। भी मोहिते सर ने 5 CR से लेके few 100 CR तक फंडिंग अवेलेबल करके दी है, तो वो फंडिंग अगर हमें अवेलेबल करनी चाहिए तो उस हिसाब से भी हमें हमारी कंपनी के ट्रांजैक्शन रखने चाहिए। तो हमें वो अगर वहां पे फंडिंग प्रोजेक्ट्स को चाहिए तो वो भी किस तरीके से हमें मिलने चाहिए, वो किस तरीके से हमें लाना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें वो एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी सुचिता मैम ने एग्जांपल दिया था कि उन्होंने एक टाइम आ गया था कि वो लॉसेस पे थे, बाद में जाके उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन ले लिया, अपने हस्बैंड से आइडियाज ले लिए, तो मेंटर की तरह उनको कुछ ना कुछ आइडियाज मिले वहां पे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे अवॉइड करना है, इसके लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हमें होल्ड चाहिए। हम जो भी अपने एक्शंस है, जो भी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट वीक में आई वॉज इन गुजरात, अहमदाबाद, एंड मेरा एक दोस्त मेरे साथ में वहां पे थे, और उनको एक मशीन परचेस करना था, जो सिंपल वुड कटिंग का मशीन था। एंड मैं वहां पे गया तो उन्होंने सिंपल वहां पे उनको बोल दिया कि जो भी मशीन का मेन फंक्शन है उसके अलावा उन्होंने उनका जो भी हाइट था वो अपने लेबर के हिसाब से हाइट उनको कस्टमाइज करने के लिए बोला। फिर वहां पे जो भी देखिए, जबकि मशीन का डिजाइन ऐसा था कि उनकी जगह और कोई होता तो वो शायद वो बोलते कि चलो मुझे यही मॉडल पसंद है, मुझे और कुछ मॉडल नहीं चाहिए। जाके ऐसे अफलातून वहां पे कस्टमाइजेशन उनको बोले कि उनका जो आइडिया वो आइडियाज हमें मिलने चाहिए, हमें सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट है कि आप सोचो और अगेन एंड अगेन सेम चीज के ऊपर सोचो तो आपको आइडियाज मिलते जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि सेविंग करो, कस्टमाइजेशन लाओ, और मनी प्रॉब्लम है तो सेविंग से सबसे ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रोडक्शन में इम्प्रोवाइजेशन लाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। फंडिंग के सही तरीके से लेके आओ तो आपका मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन सेविंग ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है मोहिते सर आप थोड़ा इस पे और यस, मैं एक मोहिते दो सर के पॉइंट पास ऐड से कर आने वाला था। अतुल सर, मोहिते सर के लिए थोड़ा सा इसी से रिलेटेड सवाल है, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम होता है। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरा आवाज आ रहा है ना? आपकी आवाज आ रही है, आगे बोलिए। ओके, सो मोहिते सर, मैं आपको एक कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ, और कॉमन चैलेंज भी है, कॉमन प्रॉब्लम भी है। सर, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, मार्केट में चलने वाला है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। सर, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं सर?
काफी अच्छा धंधा होने वाला है, काफी बिजनेस होने वाला है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है सर, मैं क्या करूं सर? प्लीज। सवाल खत्म हो गया. Okay, very good question, and I believe there is no need of money when you start a business. When you want to start a business, definitely your idea. In the morning only, I was discussing with one of my friends that when there is only idea, how you can capitalize your idea and convert it into the business. So altogether, I am very happy that Madhuri is here, Madhuri Dandekar. She is one of the, finance advisor and all together. Madhuri ji, unmute yourself. Madhuri ji, unmute yourself. Madhuri ji, can you hear me? Madhuri ji Dandekar. Okay. She maybe, I don't know, but she is one of the, the person who is doing entire thought process, because he has started at Satara, new junk, basically venture. And she is a very live example. She is our also member of our PYST. So what I mean to tell you, when there is no single penny in your pocket, but the idea of a trillionaire, what you have to do, you have to put proper business plan and proposal presentation to the investors. Today, there are two-dimensional thinking process towards the investors. Every investor, what he wants, every investor wants his return. And altogether, if you see, there are n number of basically channels are now easily available in the market where people have a money, but they are searching quality people, those who have the quality idea to invest in that. So angel investors are easily available, as well as the startup India. Under that, you can get from 1 lakh rupees to 10 lakh rupees, the bank loan, straight forward. Even if the idea is there, equity based, people are there to invest with you. There is no penny with you, doesn't matter. But yes, they forecast, they think the future of the business. Today, every investment is taking place because of the concern prediction, future of the business. If your business with the IT, especially artificial intelligence, IoT, cloud, you are going to survive a lot, because tomorrow's world of idea, tomorrow's world of a challenges, especially IT sector. So you may not have a single penny, but your idea is relevant, viable, and sellable and cashable. It is very important thing, cashable. Yes, people are there who will help you. These are the areas, these are the factual things. Money is in the market. Even how I give money to the people, I see that how the idea is that just in the morning only, I had a discussion with one of the solar concern manufacturer. He said that, sir, we want 100 CR plus. I said, sure. Then entire documentation, which I requested him, he shared me also. So here, when he invested earlier, but now further journey is very difficult. And money is the problem of today's business. Why? During this particular few years back, when we have seen a lot of financial up and downs, not only in country, but entire in the world. And very soon, we are going to face the problem of inflation because of this Ukraine and Russian war made us altogether great challenge. And the recession is about to come, but it will not harm Indian, but yes, some partially we will go through that particular shocks. So we should be, ready for the financial shocks. But for that, as rightly Atul has pointed out, we must think from saving purposes. We must think from that, right financial advisor should basically intervene here, and we must give our entire thought process in her hand. So there are two dimensions which Navnath I spoke. One, if there is no money, there is opportunity for the business grow. Not a single penny, doesn't matter.
I will give a lot of basically opportunity to the banks where I'm connected with the banks. My latest example, one of my mentee who got international award, Niranjan Ohal, we had given him BYC through 1 lakh rupees loan. Today he is having 2 CR his turnover. Now it 1,000 times turnover he has taken in that. So being a mentoring, when I'm talking about this practical mentoring, so business mentoring is not only advising, business mentoring is going in hand in a practical manner, in appropriate manner. बट मैंने डिंडोरा नहीं पीटा कि मैंने उसको मेंटरिंग की. मेंटरिंग हमेशा शांत से करनी चाहिए. मेंटरिंग अपने आप काम करती है. So that is what I personally tell you, Navnath ji. If there is someone who has that idea and not a single penny, please come. We will develop him and we'll make him to that. This is what we all together working for the purpose of the welfare of the Atmanirbhar Bharat. That is what PEEP is also intent for that. Over to you. डॉक्टर जी, जैसे कि आपने कहा भाई बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है. नहीं भाई बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है. एक शब्द में बताइए सर, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है? बिजनेस करने के लिए सर जिद लगती है, पैशन लगती है, और वो अपना जो तजुर्बा जुनून है ना सर, वो बरकरार रखना है. अगर देखो लोग हैं, आपकी जो इच्छा है, आपके जो विचारधारा ना, उसको जुड़ने वाले लोग हैं, मिलते लोग, लेकिन यू हैव टू वेट एंड वॉच. सी इफ यू हैव पुट द थॉट इन द बिजनेस, डेफिनेटली money required. Primary money is with everyone. Even seed capital is very easily through the startup and all together by this government has given a lot of opportunity. I will appreciate the government policy. I really appreciate this present government who is really opening n number of basically dimensions. But challenges are there because truly bank managers are not elite educated for developing that thought process. This is the problem with Indian banking system. So Indian banking system have the problem, and you are right. Though there is a scheme, though there is an opportunity, banking managers are not literate. So in Assam, one of my friend Samir Barua had a meeting with these all concerned bank managers, and they agreed that they have to approve the scheme in that line. So same thing should be happen in Maharashtra or in every state. Yes, then there is no need of a single penny, but understand the schemes, understand the junoon in that line. That is what Navnath ji. Yes, great sir, great. जैसे कि मैंने अंडरस्टैंड किया है, आपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको और जो भी इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की है. और जो मेरी समझ में आया है वो मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में पैसा लगता नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन बिजनेस में पैसा लाने के लिए बहुत सारे वेज हैं. पैसे के सिवा बिजनेस नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन पैसा लाया जा सकता है अगर आपके पास सही आइडिया हो, सही बिजनेस की सोच हो, तो बिजनेस में पैसा आता है. आपके पॉकेट में नहीं है मतलब बिजनेस में पैसों की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है. बिजनेस में पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पॉकेट में नहीं है तो किसी और के पॉकेट से पैसा आप आपके बिजनेस में लेके आ सकते हो. ये आप मैसेज देना चाहते हैं, और इसी से आपका बिजनेस डेवलप होगा, एस्टेब्लिश होगा, और उसका जर्नी भी लॉन्ग टर्म रहेगा. Am I right, sir? Absolutely perfect. Absolutely. That is what the answer. Perfect. Yeah. Thank you, sir. हमारे साथ में शंतनु रास्ते सर जो है, उनका जो प्रोफाइल है उनके कंपनी में वो है स्पेसिफिकली मार्केटिंग एंड सेल्स द प्रोडक्ट्स. सर आपके ओर देखते समय मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सर कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, दे दो मुझे कस्टमर, दे दो. कैसे आप कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से बिजनेस में कस्टमर लेके आते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिकॉज कोई भी बिजनेस रहे कस्टमर तो सबको ही चाहिए. Not only my business, anybody means who is in business, they needs customer, because customer राजा है. See, मैं जो बोला ना कि अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकेंगे. लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है. छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरा ये बिजनेस है, ये बिजनेस का ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट मुझे कौन से मार्केट में मैं ज्यादा उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ,
उसके कस्टमर कौन है। अभी मेरा जो कैटेगरी आता है वो थोड़ा आयुर्वेदिक है, तो एफएमसीजी कैटेगरी में आता है, तो हर एक जन कस्टमर है। सो मुझे थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी में बिजनेस मैं कर सकता हूँ। सब इंजीनियरिंग फील्ड में जो रहेंगे, मशीनरी में जो रहेंगे, उनको कस्टमर एक स्पेसिफिक रहेंगे, तो उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रहेगा। बट कस्टमर फाइंड आउट करना एक टैक्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको नेटवर्किंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हर बार आपको की वैल्यू मार्केट आपको मार्केट का स्टडी करना, और मार्केट में कौन से नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उस पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्रोडक्ट मैं निकल रहा हूँ और उसका कॉम्पिटिटर कुछ अलग वही प्रोडक्ट अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर टूट जाएंगे। टूट जाएंगे मतलब दे विल डाइवर्ट टू सम। सो वो डाइवर्ट नहीं हो, इसलिए आपको बार स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है, नए प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट वीडियोस निकालने पड़ते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज रादर। सो मुझे हमेशा लगता है कि कस्टमर वही है। आप जब बिजनेस करते तो आपको अलग अलग ढंग से उसको आपको प्रेजेंट करना है बिजनेस। एक ही जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बार बार अलग अलग एडवर्टाइज निकालती है, हैमर करती है प्रोडक्ट को। आपको हैमर करना है मार्केट में। जितना आप प्रोडक्ट को हैमर करेंगे बार बार, उतना वो प्रोडक्ट माइंडसेट में बैठ जाता है कस्टमर के, और कस्टमर विल बाय। सो मुझे लग रहा है कि अभी ये नए टेक्नोलॉजी की वजह से ना कस्टमर फाइंड आउट करना, ये नहीं बोल रहा हूँ, पर कस्टमर को इजीली थोड़ा ज्यादा जल्दी आपको कस्टमर मिल जाता है। बिकॉज ऑफ नाउ दिस इंटरनेट, यू गेट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन गो टू एनी बडी इन द वर्ल्ड। तो ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि हम कस्टमर ढूंढना ये अभी बहुत ही कम हो गया है। आपको इजी वेज अभी मिल गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। सो मेरे फील्ड में तो मैं हमेशा अलग अलग नेटवर्किंग ग्रुप पे रहता हूँ, अलग अलग नेटवर्किंग चीजें मैं करता रहता हूँ, अपडेशन लेता हूँ, 1-to-1 करता हूँ, और मेरे प्रोडक्ट के बारे में बार बार सामने पुटअप करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मुझे बिजनेस मिल सकता है। और शायद मुझे लग रहा है यही चीज कॉमनली हर एक बिजनेस में होती है। सर, आपके लिए जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं एक शब्द में अगर आप सवाल देना चाहोगे तो किस तरह से सवाल दे सकते हैं? कस्टमर किसको बोला जाता है? अगर मैं स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इट्स अ जेनेरिक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, जो हर एक प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, हर एक सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता है। हु इज द कस्टमर? कस्टमर किसको बोला जा सकता है? कस्टमर उसी को बोला जा सकता है जिसको आपका प्रोडक्ट बराबर पता चला है, उसको वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए वो हैप्पी है, रादर उसको वो अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट, और उसको उसका पूरी आपके प्रोडक्ट की जानकारी है, और वो राइट जगह से वो प्रोडक्ट खरीद के उसको अपने लिए यूटिलाइज कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कस्टमर, मैं भी एक कस्टमर हूँ, हर एक जन एक कस्टमर है। सो खाली एक ही है कि सेटिस्फाई होना चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए सेटिस्फाई है वो आपका कस्टमर। सही मायने में बोलूं क्या सर, मैं दुनिया में जो भी जिंदा आदमी है ना, वो कस्टमर है। ये तो ऐसा हो गया, मतलब दिस इज okay. But that is a very good definition. But आजकल खाली आदमी लोगों की जरूरत नहीं है, आजकल वेटरनरी प्रोडक्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो जानवर भी रहेगा तो वो भी आपका कस्टमर हो सकता है। यानी कि हर सजीव, ऐसे बोलेंगे हर सजीव, हर सजीव आपका कस्टमर है। प्रणव सर भी कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रणव सर, ओवर टू यू। कस्टमर चाहिए वो तो बात अलग हो गई, लेकिन हर एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए कस्टमर के साथ साथ में प्रोडक्ट भी चाहिए। तो आप एक है कि सेट ऑफ कस्टमर के ऊपर काम करो और नए नए प्रोडक्ट वही कस्टमर को देते रहो, और एक है कि आप सेटअप प्रोडक्ट के ऊपर काम करो और नए नए कस्टमर ढूंढते रहो। तो दोनों तरीके से आप बैलेंस आउट करके आपका बिजनेस चला सकते हो।
ये बात तो रही कस्टमर की, बट मुझे यहाँ से मोहिते सर से एक क्वेश्चन था, अगर आप अलाउ करते हो तो। पूछो पूछो। कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया किसी ने भी, लेकिन उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेना है, उसको टीम बिल्ड करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, और मैं आपका आभारी हूँ कि ये आपने सही वक्त पे सवाल पूछा है। कोई भी अगर बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही टीम होनी जरूरी। सो देयर शुड बी अ क्वालिटी टीम, and quality team building takes place only when the necessary skill sets which required for performing that particular business, all areas, whatever, production, process, system, whatever you want to bring, if we are bringing people, that talent, tomorrow there will be the war of talent. Please listen my word, everyone here today. There will be the war of talent tomorrow. Now it has begun. The talent is going to survive, and not the average person is going to survive in the market. So like me, there are very few mentors in the world who basically thinks from the bottom of the heart, not from the head. Because I sensitize, I really feel what my mentee wants. So sir, answer to your question, your team should be well equipped with the sensibility, with the common sense of the business, and the coherence. Unless and until they will not be with the gel, they will not be with the oneness and togetherness, the team for the sake of the team will not work. So here we have to nurture, develop, craft our people within the group if the talent is there. If not, we can go and hire new talent from the campuses, and we can nurture them, we can develop them. That is what I am doing, sir. So definitely if there's someone is there, I will support professionally, no second thought, sir. प्रणव, मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले भी सकते हैं, and we will, I assure you, I have developed so far, right now I'm working on 51 projects in India and abroad with startups, and also those who are working last 10 years, 15 years, I'm guiding them. So what I do, I always see, I do the research. My mentoring is not the vague mentoring. It is a research-based mentoring related with the happenings of business to business. And team is also should be studied properly, and talent should be selected in such a way where the team will go ahead with creating further team. It will be a succession planning. So it should not happen that 5 years, 10 years, you will do the wonderful business. But after that, we will generate second team, which will continue further. So this is the team building, sir. Team building is not for the temporary period of the 1 month, 2 months, 6 months. और ये मोटिवेशन ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता सर, इसके लिए मेंटरिंग की जरूरत होती है। आजकल जो ट्रेनिंग वगैरह की जो बातें होती है ना, वो बहुत गलत है सर। Everyone should come with the proper mentoring process, and that is what we believe in mentoring, sir. So Pranav ji, I hope you got the answer, and for me, you can note down my number. I'm just putting in the chat box. परफेक्टली, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया सर। प्रणव सर, आपने जो टीम के बारे में पूछा, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सटेंड करके मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ द टीम, इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा, आप में से कोई भी उसको आंसर दे सकते हैं कि कस्टमर कौन होता है आपका। मैं यहाँ पे बिजनेस क्या है इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। अगर बिजनेस की होल साइकिल अगर हम लोग देखेंगे, तो साइकिल क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है? आप में से कौन बता सकता है? प्रणव सर, आप बता सकते हैं कहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है? अभी हम लोग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? बिजनेस वैसे देखने जाओ तो एक सोच से चालू होता है, एंड ट्रांजैक्शनली देखने जाओगे तो जब आप कुछ किसी को बेचते हो और पेमेंट लेते हो तब होता है।
यस, आपका बिजनेस सोच से चालू होता है। जब आपकी सोच बढ़ती है, कुछ आइडियाज आता है, तो वो आइडियाज से आपका प्रोडक्ट बनता है और सर्विस बनती है। लेकिन ये सोच कहाँ से आती है? तो एक आदमी से आती है या एक ह्यूमन से आती है, राइट? वेरी राइट, गो अहेड, वापस से ये जो सोच है, वो सोच बनने के बाद प्रोडक्ट कौन बनाता है? वापस से एक जिंदा आदमी आता है, बराबर है? जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, जो सर्विस बनाने वाला है, वो भी एक आदमी है। बाद में ये जो प्रोडक्ट आप बेचते हो, ये उसको क्यूसी बनाते हो, क्वालिटी बनाते हो, तो कौन बनाता है? वापस उसका जवाब आता है एक जिंदा आदमी, बराबर है? उसके बाद में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, किसको बेचते हैं? जिंदा इंसान को। और किसको बेचते हैं? परफेक्ट। अभी उसको प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद में उसको सर्विस देना है, कौन देता है? जिंदा आदमी, दूसरा कोई नहीं देता भैया। बराबर है? अभी ये जो प्रोसेस है ना, जहां से सोच से चालू हो गया अप टू द कंजम्पशन, ये सारे जगह पे जिंदा आदमी आता है। अब ये जिंदा आदमी को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, मैं उसको बोलता हूं टीम। तो पीपल मैनेजमेंट इज द की ऑफ योर सक्सेस बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को सक्सेस बनाना है ना, तो उसमें आपको लोगों का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मेरा एक एक्सपीरियंस है सर, 1 मिनट में मैं शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक कस्टमर था, उसका सर्वर का हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो गया मेरे इंजीनियर के पास से, ह्यूमन एरर, पूरा डाटा लॉस, कोई बैकअप नहीं था। अभी मुझे आप बताइए, कस्टमर ने क्या करना चाहिए? उसकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं उसके पास गया, उसके केबिन में गया, उसने क्या रिएक्शन करना चाहिए? अभी 10 साल पुरानी स्टोरी है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होना चाहिए? प्रणव सर प्लीज, आपको क्या लगता है? नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव ना। प्रणव सर आप बताइए, आपको क्या लगता है उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो केबिन में बैठा हुआ है, मैं उसके केबिन के सामने गया, उनके सामने खड़ा हो गया, उसकी रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक बहुत गुस्सा होगा वो, और वो भी सोचेगा कि क्या कर सकते हैं अभी आगे, क्योंकि डेटा तो गया है। सर मैं बताता हूँ, उस आदमी का एक्सप्रेशन ये था कि नवनाथ बैठो, जो हो गया हो गया, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, ये होता रहता है। अभी आप मुझे बताओ क्या करना है आगे, इसको किस तरह से हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं? 3 दिन उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए डाटा रिकवरी के। जब तक डाटा रिकवर होता नहीं है, तब तक कस्टमर ने थोड़ा भी प्रेशर नहीं किया। पूरा का पूरा डाटा रिकवरी हो गया, उसका डाटा रिट्राइव हो गया, उसका काम वापस से चालू हो गया। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है यहाँ पे कि कस्टमर के साथ आपका बॉन्डिंग क्या है, आपका रिलेशन क्या है। क्या कस्टमर आपका फैमिली है या कस्टमर के आप फैमिली है? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बात कर रहा हूं ना, मेरे ऑफिस में जो लोग मेरे काम करते हैं, वो मेरी खाली टीम नहीं है। मेरी टीम वो है जिसके पास से मैं सर्विसेज लेता हूं। मेरी टीम वो है जो सर्विसेज के ऊपर काम करती है, और मेरी टीम वो है जिसको मैं डिलीवर करता हूं। ये पूरी इंटायर सिस्टम जब एक छत में आती है, उसको हम लोग टीम बोलते हैं। और ये टीम मैनेज करना और उसमें सक्सेस होना बिजनेस का सक्सेस है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, परफेक्ट। Am I right, डॉक्टर मोहिते?
Absolutely perfect. Very nicely. He has put different dimensions and he added the value in the team coincidence. Wonderful. Abdul Sheikh is here. He has raised his hand. Yes, Abdul ji, आपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? Abdul ji? Sir, I'm from Karnataka, sir. Yeah, please go ahead, sir. सर क्या होता है अभी हम लोग कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे जज्बात आइडिया और इंटरेस्ट रहता है इमोशंस वी आर स्टार्टिंग एनी वर्क विथ इमोशंस आइडिया और इंटरेस्ट जैसे जैसे हम लोग उसमें काम करते हैं 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर और 6 मंथ होते जाता है तो उसमें इंटरेस्ट कम होते जाता है तो रियलिटी इज डिफरेंट हकीकत अलग है जज्बात अलग है तो हमारी सोच बदलते जाती है तो हम तो इसको कंसिस्टेंसी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर बहुत आसान है सर बहुत सर मोहित सर आप आंसर देने से पहले मोहित सर आप आंसर देने से पहले मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे करेक्ट बहुत अच्छा सवाल है मुझे बहुत पसंद आया सर का सवाल आप में से सब लोगों को मैं ये सवाल का आप आंसर देने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं ओके जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ इमोशन होता है ये सर का सवाल है और वो कंसिस्टेंटली जाते 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 वो रियलिटी और इमोशंस एक डिफरेंट है ऐसा सर का सवाल है मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं मेरा मानना है कि दुनिया में जो भी बेचा जाता है ना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस इसमें ही हम लोग बिजनेस में देखते हैं ना तो मेरा ये मानना है कि मैं मेरे बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचता मैं मेरे बिजनेस में कोई भी सर्विस नहीं बेचता आप भी आपके बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हो आप भी आपके बिजनेस में कोई भी सर्विस नहीं बेचते हो आप बेचते हो तो वो है इमोशंस ओनली आप आपके प्रोडक्ट में से आप आपके सर्विस में से इमोशन निकाल दो आपका प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा ओवर टू यू अभी आप आंसर दे दीजिए वंडरफुल I respect your explanation and Abdul over to you with I'm answering your question now देखो आपने जो सवाल पूछा और उसका जो फंडामेंटल है जो नवनाथ ने अभी रखा है यहाँ so what actually he wanted to say any business we are human beings everyone is here cannot keep his emotion away and speak anything it is with us so what you're talking something different perspective that I will answer that perspective also I understood what I want to ask I know that your basically approach is that in the beginning we start with the motion with the full emotion and that motion then later on started stopping with only mechanically but not emotional that is happening in your company or anyone's company it is because the people who are become mechanical where the people are mechanical and they are like a robot then they are not with the feelings they are only for 8 hours job so these all job holder or employee who will not have connectivity belongingness and respect and value to that particular organization but they know that I paid well I am performing means they are working for the skill sense and they are working for their earning sense here today's wonderful world is based on not on the money but today's young generation employees needed luxurious life well-being is a primary thought process of today's young generation they want luxurious living thought process today's earlier money was important but today money has become a secondary so now you will have to change the policy in your organization that you will have to bring wellness activity and well mind altogether the healthful activity where mindfulness activity if you started carrying it
then they will realize the value of your organization. Then whatever the age doesn't matter. But yes, once you will start again, whatever Navnath has put earlier thought, that again coming to that when you are touching to their emotion, yes, I am carrying you, I am with you, and I know that you are a talent. Therefore, I really say there will be a war of talent, and talent is required tomorrow only luxurious thought process. His work condition should be good. He should have a healthy work environment. There should be healthy culture. Tomorrow's talent will not like a politics. Let me tell you one thing. Yes. Whatever happened past is a past. But tomorrow's world, tomorrow's organization will have to eradicate the politics, that is the office politics, permanently. Then they will survive. Tomorrow there is only one caste, and the caste is talent. There is only one religion, that is a talent religion. There is only one humanity, that is based on the talent. So tomorrow the talent is underlined, my dear. So in your organization, the example which you are given, why people change? People are not changing. The people's behavior, psychology is such a way drastically changing in today's world, because everyone wants what he or she wants according to his potential, competencies, and therefore we'll have to work on that area also. But yes, we must work on mindfulness. If you work on that way, people will get connected 100% 24/7 with you, and you have to make flexible work hours. I'm sure people will give 100% input to you, and therefore you will connect with emotionally forever. Again, the matter comes with emotional relationship. That is what I'm talking. Emotional quotient, intelligent quotient work, but emotional quotient, social quotient, spiritual quotients are going to work tomorrow in organization. Without that, nothing will go. I hope, Abdulji, you got the answer. Sir, one more small query, sir. What is the best thought to start and finish any work or challenges, sir? In what sense? ये सर कौन से ऐसी अच्छी सोच से हम लोग कोई भी काम या चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं सर? No, it is again situation to situation, business to business. It is a subjective. It is a subjective. So it is not a specific guaranteed answer. Now you are Abdulji there at Karnataka. Which place you are at Karnataka? I'm from Karwar district, sir. Karwar district and this Yellapur taluk place. Okay, no problem. Oh, no problem. See, sir. now yes, Navnath ji, wait. So when see, when you Abdulji say that, what will be the beginning? What you begin with your early morning thought? Thought of positivity, yes, sir. Thought of creativity, thought of my something to that way to do today. If you wake up with that thought, your energy you are creating. The today's world is based on energy. Why we all are here only selective people? Because energy has attracted through digital platform. Very sure. Why some are there till? Because this is the fact. So you will have to generate your energy to maintain the flow throughout the morning to evening. And for that, you will have to have a positive generosity, positivity, and in and around, you will have to be with your personal positive strokes, though there are external negative strokes. This is what, in that line. Yes, Navnath and Shantanu want to say something to you. Great answer, great answer. सर मैं इस सवाल का है ना 2 शब्द में आंसर देना चाहता हूँ. चलिए बताइए. I will. ये 2 शब्द है ना, अगर आपके साथ में है तो everything is possible. मैं हूं ना. Shantanu sir. Yes, you are absolutely right, Mohit sir and Navnath ji, because I will, ये 2 शब्द में इतनी पावर है. मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. There are a lot of obstacles when I started my business, but मैं ना एकदम फोकस था कि नहीं, इससे मैं बाहर निकलूंगा, इससे मैं बाहर निकलूंगा. एंड ये सोचना आपको एक कुछ अलग ही एनर्जी देती है. एंड जो प्रॉब्लम साइड में जो सब रहते हैं आपके बिजनेस में, ऑटोमेटिकली दे विल कम डाउन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
all is well हम जो बोलते हैं ना, that is what I think about. And another thing is very important. थोड़ा एक चीज है कि अब्दुल जी आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है? थोड़ा आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, बट अब से सब बोलिए सर. एनी गेम, एनी चीज जो अतुल बोराडे, क्वेश्चन टू यू. अब्दुल जी अच्छा, अब्दुल जी, सॉरी. Can you repeat again, sir? आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मतलब स्पोर्ट्स में हो, कोई भी हो, जो जिंदगी में आपको सबसे अच्छी लगती है. Sir, सबसे अच्छा, I would like to help. I would like to collaborate, like that kind of activity. I always inspired. आपको कोलैबोरेशन अच्छा लगता है. So try to focus psychologically your business with your सबसे अच्छी चीज जो है उसको कंपेयर करो. मतलब मैं हमेशा करता था, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो मुझे जिम में जाना अच्छा लगता था, तो मैं जिम में जाना और मेरा पढ़ाई, इसको माइंडसेट में रहता था हमेशा. तो उससे क्या होता था कि जो अगर मुझे कुछ भी बिजनेस में अच्छा नहीं लगना है तो मैं उससे कंपेयर करता था, एंड आई विल मूव फॉरवर्ड. सी दिस इज साइकोलॉजी. एक ब्लॉक रहता है, उसको आपको निकालना है और ऑलवेज माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. हाँ, यू हैव टू कंपेयर योर जो अच्छी चीज है उससे आप बिजनेस को कंपेयर करो. आपको आहिस्ता आहिस्ता लगेगा कि अरे हाँ, इससे मैं निकल रहा हूँ. इसलिए हमेशा चीज ध्यान में रखो. ऐसा सोचो कि बिजनेस का ये आपका पहला दिन है. मैं 22 साल के बाद भी मैं हमेशा सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ नाउ दिस इज आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस. ऐसे वेरी ट्रू. इसका भी एक अलग से एनर्जी आपको मिलेगा साइकोलॉजिकली. दीज आर ऑल बहुत बढ़िया. और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें. बहुत बार क्या होता है बिजनेस में, अप्स एंड डाउन रहते हैं. हर कोई चीज है जो अपने हिसाब से होगी नहीं, तो उसका असर अपने ऊपर पड़ता है, एनर्जी पे पड़ता है. तो हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड में फील करते हैं. तो अब्दुल जी, आप जो बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो उसके पीछे वो एनर्जी हमें कैसे बरकरार करनी चाहिए, वो कैसे प्रिजर्व करनी चाहिए. तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम, चैलेंज वो स्मूथ जा रहा है, तो कोई भी टास्क स्मूथ जा रहा है, तो कुछ हम लोगों को उसमें बोरिंग नहीं होता है. मतलब कोई भी टास्क में चैलेंज आ गया तो हम लोग उसमें इंटरेस्ट कम, we want to detach from that situation. एग्जैक्टली. उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए. एग्जैक्टली. तो सर ऐसे टाइम पे ना मेरा एक थोड़ा सा आइडिया ऐसा भी है कि जो भी हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो फाइनल एक गोल होता है. तो मेरा मानना है कि हम लोग जो गोल है सेट, वो एक स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करना पड़ेगा. यस सर. ओके. तो जैसे भी हम लोग वो चंक्स को एक अचीव करते जाएंगे, अपना एक विनिंग का फील आते जाएगा. कि बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो, छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो. हाँ, जैसे भी एक स्टेप्स आप अचीव करोगे, यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, और आप वो एक विनिंग एटीट्यूड अपने आप आते जाएगा, वो एनर्जी अपने आप बढ़ती जाएगी. तो जैसा अभी शंतनु सर ने बोला कि वो जिम को कोरिलेट करते हैं अपने पढ़ाई से, तो चलो मुझे 25 पुशअप्स में इजी कर लेता हूँ, आज मैंने 50 पुशअप्स कर ले, आज एक और चैप्टर पढ़ लिया मैंने. तो वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है. तो वैसे भी हम लोग अगर रियल प्रैक्टिकल गोल स्मॉल चंक्स में डिवाइड करेंगे और एक चंक्स को पार करते जाएंगे, तो आपका एनर्जी बढ़ते जाएगा. तो वो आपको पता नहीं चलेगा कब तक आप अपने फाइनल गोल को रीच करेंगे, वो पता भी नहीं चलेगा जर्नी में. तो वो एक एंजॉय, ऐसा भी होता है, हमें एंजॉय करना है. तो कभी कभी ऐसा भी होगा सर कि चलो सब कुछ करके भी कुछ ये नहीं किया, मतलब फाइनल गोल अचीव नहीं हो पाया. सो इट्स पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. हर जगह पे भी ये नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेथड से प्रोसेस एंजॉय करो, मेरा ये मानना है. प्रोसेस एंजॉय करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तो आपको दुख कम होगा. श्योर सर. दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, रिसेंट अचीवमेंट आपकी जो भी रहेगी ना, वो शेयर करो फ्रेंड सर्कल में, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स है. बिकॉज क्या होता है, रिसेंट अचीवमेंट जब हम भी शेयर करते हैं ना, अपना खुद का एक सेट बनता जाता है उस हिसाब से. सो रिसेंट सक्सेस स्टोरी, रिसेंट अचीवमेंट, यू हैव टू शेयर विद द पीपल, विद द नेटवर्किंग पीपल. नेटवर्किंग. यस सर. थैंक यू सर. सेलिब्रेट करना चाहिए. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल. काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया अतुल सर आपने, शंतनु सर आपने, मोहित सर आपने भी. इसमें और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ
कि जैसे कि अतुल सर ने बताया कि पार्सल्स में आप उसको डिवाइड करो और एक स्टेप अचीव करके आगे जाओ। इसमें जो आपका सवाल था ना सर, वो बिजनेस में नहीं तो पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। बहुत बार अप एंड डाउन हमारे पर्सनल लाइफ में भी आती है। जब हम अप होते हैं ना, प्रोग्रेसिव होते हैं ना, तब हम लोग इजीली हमारा ट्रैवल, हमारा जर्नी करते हैं, हमें कुछ नहीं लगता है, हम हैप्पी होते हैं। लेकिन जब डाउन जाते हैं ना, जब प्रॉब्लम आता है ना, जब चैलेंज होता है ना, वो प्रॉब्लम में हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। हम लोगों को लगता है यार ये सारा छोड़ देना चाहिए, ये नहीं, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज, अभी मैं क्या करूं। जैसे कि मैंने अर्लियर एग्जांपल बताया जो मेरे लाइफ में हुआ था हार्ड डिस्क क्रैश का। वो कस्टमर ने जब देखा कि हार्ड डिस्क पूरा का पूरा गया, उसका कंपनी का डाटा पूरा गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उस आदमी की उस टाइम की सिचुएशन क्या होगी सर? वो सिचुएशन उसने कंप्लीटली न्यूट्रल फॉर्म में लिया, और न्यूट्रल फॉर्म में लेके उसने ये सोचना चालू किया कि अभी ये इंसिडेंट हुआ है, अभी मुझे आगे क्या करना। ये जो सोच है ना, ये सोच मैटर करती है। ये सोच मैटर करती है कि आप कितने स्टेबल होते हो, आप कितने न्यूट्रल रहते हो। आप ज्यादा हैप्पी हो तब भी आपको न्यूट्रल रहना है, जब आप ज्यादा नर्वस हो, जब आप डिप्रेशन में हो, तब भी आपको न्यूट्रल रहना है। कोई भी सिचुएशन आए ना अपने सामने, अगर हम न्यूट्रल फेज में काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट अगर हम लोग इसके ऊपर नहीं होने देते हैं, तो हम लोग राइट डिसीजन ले सकते हैं, और राइट डिसीजन से हमारा लाइफ हम लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। राइट डिसीजन से हम हमारा बिजनेस बना सकते हैं। प्रणव सर, आप भी कुछ कहना चाहते थे? सर मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा कि जब भी हम लोग कुछ डाउन फील करते हैं बिजनेस में, तो एक ही बात सोचना है कि ये बिजनेस में मैं आया क्यों था। बस ये सोच लिया, आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। यस, शशि मानी सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शशि मानी गुप्ता, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हम मोदी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं बताना चाहूंगा कि मैं यूपी का हूँ और एकदम पूर्वी कोना जो है बिहार से सटा हुआ, बिहार से वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और जैसे कि फ्यूचर बिजनेस की बात कर रहे थे सर, और मैं जो सुचेता मैम थी और शांतनु सर थे, नो डाउट, चूंकि एक पढ़ा लिखा एक वर्ग है, और जो कहा जाए यूरोप कहा जाए तो पश्चिम देशों में आता है और बहुत ही सम्रांत है। और ये क्योंकि आज का टॉपिक था कि बिजनेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव के लेवल पे क्या बिजनेसेस हैं जो फ्यूचर बिजनेस, जिसको आप कहें फ्यूचर बिजनेस जिसे कहते हैं वो, और उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें हम करें क्या है। क्योंकि गांव के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वही आता है खेत खलिहान, गाय भैंस बकरी, और जो उनके छोटे छोटे नीड हैं, बच्चों की पढ़ाई है। अब जैसे आप आईटी सेक्टर की बात करें तो ये क्लाउड व्लाउड, वो उनसे वो लोग नहीं ज्यादा जानते। और जब भारत की बात करते हैं तो अब तक हम डेटा पढ़ते आए कि भाई 30% लोग जो है शहरों में निवास करते हैं, 70% लोग आज भी गांव में निवास करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नो डाउट, अब 70% मैं अपने अगर जिले की भी बात करूं तो अगर 70% लोगों के साथ अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो एक बहुत बड़ी मतलब एक जनसंख्या है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बहुत चीजें ट्राई किया लेकिन मैं नहीं सरवाइव कर पाया। बहुत देखा कि भाई चलो मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन किया, फिर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद पता चला कि सब चिकन का सप्लाई बंद है। फिर मैं सोचा कि अच्छा चलो जो पानी की बोतलें हैं उनको पैक करके बेचा जाए। लेकिन ये मैं फ्यूचर बिजनेस जानना चाहता हूँ कि गांव में आने वाले 20 सालों 20 साल बाद इस गांव में क्या हो, मैं उसको उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आज से 20 साल बाद ये हमारे गांव में क्या हो। जैसे शहर जो होता है, गांव गांव कस्बा बनता है, फिर जिला बनता है, फिर प्रदेश बनता है, फिर शहर बनता है। वैसे ये इसमें क्या आएंगी आने वाले 20 सालों में गांव में, क्योंकि खेती तो रहेगी प्राथमिक चीजें, उसके चीज साथ बदलाव क्या क्या हो।
शशि, सर ये शांतनु सर और मोहिते सर, चूंकि शांतनु सर मार्केटिंग से जुड़े हुए थे और मोहिते सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा। और ठीक है, मार्केटिंग मुझे नहीं आती है, और इधर के जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब वो जानते हैं, सब जानते हैं कि नहीं ये करूंगा तो मैं घाटा हो जाएगा, चलो जाने दो, अब अपना आदमी है छोड़ो कर दो। ये सब चीजों से निकल पाना मतलब बहुत, मतलब मेरी उम्र 35 साल हो गई और मैं सब जानता हूँ कि सामने वाला बंदा धोखा देगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं निकल पाता। अब ये मेरी कमी है कि क्या है, अब पता नहीं। ठीक है। मैं अपना पहला आपके देहात लोगों के बारे में 20 साल के बाद क्या चीजें होगी, ओके जी जी। इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज देहात में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग का जो भी रवैया अपनाना है, कि जिस तरह से आपको मार्केटिंग का बात करना है, इसके बारे में हमारे शंतनु जी आपको गाइड करेंगे। अगर आप फंडामेंटली ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर चलेंगे आज, तो आने वाले 6 साल के बाद आपकी ये जो जमीन है वो ऑर्गेनिक बनने लायक हो जाएगी, वो फर्टाइल हो जाएगी, वो ऑर्गेनिक बनेगी। लेकिन आफ्टर 6 इयर्स, कि जब तक आसपास की खेतियां पूरी की पूरी ऑर्गेनिक नहीं होती, तब तक ये ऑर्गेनिक बीच वाली जमीन ऑर्गेनिक नहीं होती। तो 3 साल बाद तो लाइसेंस मिलता है, 4 साल बाद उसका ऑर्गेनिक। वही बता रहा हूँ। तो इसीलिए इस पे पहला आप काम करना शुरू करो, लोगों में, आपके एनजीओ के द्वारा आप जो काम कर रहे हैं, लोगों में जाते हैं, लोगों के बताते हैं, तो ये काम आप शुरू करो। यानी कि 20 साल के बाद हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक दुनिया के इंसान को ऑर्गेनिक फूड की जरूरत होने वाली, और ये हमारे देहात से आने वाली। इसीलिए शशि, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खेतों में है। और वहां दूसरी चीज है कि अगर आप आयुर्वेदिक की जो भी सारी दवाइयों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, अगर आप देहात में लगाने शुरू कर देंगे और ऑर्गेनिक के खेती के साथ अगर आयुर्वेदिक प्लांटेशन करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले दिन में आपका कस्बा एक अच्छा शहर बन जाएगा, और वो शहर आयुर्वेदिक शहर के नाम से बुलाया जाए। ये अपॉर्चुनिटी आपके गांव के लिए आने वाले 6 साल के बाद बोल रहा हूं, 20 साल की तो बात छोड़ दो, 6 साल में हो जाएगा। यानी ये अपॉर्चुनिटी है। इसलिए पेशेंस रखना है, लेकिन हमें देखना है कि फार्मिंग एक ऐसी चीज है कि फार्मिंग के बिना आप और मैं रह नहीं सकता। खाना खाएगा तो मैं रह सकता हूं, यानी कि खाना उपज होनी ही है, धान पिकाना ही है, लेकिन आगे जाके धान की मात्रा होगी, ऑर्गेनिक होगी। और जो मार्केटिंग की बात है, तो मैं शंतनु जी को रिक्वेस्ट करूंगा, शंतनु जी प्लीज फोकस ऑन द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। क्या होता है शांतनु सर, सर यहाँ पे जो चीज मार्केटिंग जो चीज होती है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं कुछ भी हो, लेकिन अब जैसे मोहिते सर ने बताया कि भाई आप मेडिसिन का प्लांटेशन करें, मैं नो डाउट उसमें अपना जी जान लगा सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ फंसती क्या कि उसका मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? हमको तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा, और बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं। यहाँ पे बात है कि हम अपनी चीज को अच्छा बता करके नहीं, उसका प्रचार होना चाहिए। जैसे पतंजलि है, पतंजलि क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, डाबर क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, नो डाउट वो अच्छी चीजें बेचते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके समानांतर भी चीजें बेचे, और लेकिन हमको लोग जानेंगे नहीं, वो खरीदेगा हमारी। वो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, हम 20 रुपए किलो देंगे तो कोई नहीं लेगा। ये सब चीजें सर हैं बहुत ज्यादा। देखिए क्या होता है शशि जी, कुछ भी मार्केटिंग में एक 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्राइस। बराबर? अभी आपके पास ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, और तीनों चीजें अपने अपने जगह सही होती है। जैसे आपके पास अभी प्रोडक्ट, समझो फॉर एग्जांपल आपके खेत में कोई प्रोडक्ट अभी बन सकता है, भले वो कम पे बनेगा, ज्यादा पैमाने पे बनेगा, तो उसका प्राइस स्ट्रक्चर क्या रखना है, कम प्राइस में अगर आपको देना है तो कैसा दे सकते हैं। और प्लेस, अभी क्या होता है, उल्टा जाएंगे हम। प्लेस जो है, मतलब आपको अगर पूरे इंडिया में आपको अगर आपका है, तो अभी ये नेटवर्किंग ग्रुप्स जो अभी आ रहे हैं, जैसे फीप है, फीप पे अभी आप आए हैं मीटिंग में,
आप अगर नेक्स्ट मीटिंग में कुछ प्रोडक्ट लेके आएंगे कि समझो मेरा ये प्रोडक्ट है, समझो हल्दी है, हल्दी का पाउडर है और इसका मुझे मार्केटिंग पैन इंडिया करना है, तो अभी एक अच्छी चीज क्या हुई है कि आप बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे आपके स्टेट में बैठे बैठे आप पूरे इंडिया में आप प्रेजेंट दे सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप प्रेजेंट दे सकते हैं, आपका प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं। तो आप वो प्रोडक्ट पहले लेके आइए। कुछ भी करना है ना तो पहले सामने प्रोडक्ट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ये सब चीजें ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आपका प्रोडक्ट लेके नहीं आते तब तक आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, प्रोडक्ट जो भी रहे आपके यहाँ, आप एक काम कीजिए, आप सर्वे कीजिए कि आपके यहाँ क्या ज्यादा अच्छा हो सकता है, कम कॉस्ट में आप दे सकते हैं क्या, बल्क में दे सकते हैं क्या, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। सी इंडिया के पास रूरल में इतने एबिलिटीज है, इतनी क्वालिटी है उधर कि उनको खुद को मालूम नहीं है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पोहा बहुत अच्छा होता है, बट उधर जो हम बोलते हैं ना, जिधर उगता है उधर बिकता नहीं है, और वही प्रॉब्लम है, उन लोगों को मालूम ही नहीं वैल्यू क्या है। तो अभी ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मालूम होनी चालू हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेटवर्किंग ग्रुप, ऑनलाइन जूम मीटिंग से आप बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास समझो फॉर एग्जांपल हल्दी है, तो हल्दी आप अगर अपने जूम मीटिंग में दिखा रहे हैं तो मेरे मन में आएगा, अरे यार शशि जी के पास बहुत अच्छी हल्दी है, कुछ है, तो उसको मैं आपको रेफरल दे सकता हूँ। 1-to-1 करना, सामने से रेफरल लेना और उसका रेफरल थ्रू मार्केटिंग करना, ये अभी बहुत आसान हो गया है बिकॉज ऑफ मीटिंग। तो आप पहले एक प्रोडक्ट लेके आइए, और नॉट नेसेसरी प्रोडक्ट को अच्छा ही पैकिंग चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक एक स्टेप आगे जाइए। जैसे अभी अतुल सर बोले, जो भी आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन रहेगा, उसको डिवाइड कीजिए छोटे छोटे स्टेप पे और आगे बढ़िए। एक स्टेज ऐसा आएगा ना कि आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा, अरे यार मेरा प्रोडक्ट तो कलकत्ता में भी जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट मैं रीसेलर थ्रू दिल्ली में भी बेच रहा हूँ। थोड़ा एक एक स्टेप आगे जाइए, एक एक प्रोडक्ट लाइए, पहले मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट लाइए, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन मूव अहेड। मार्केटिंग, आप सर प्राइमरी प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं कि सर कि जैसे कि या फिर उसको वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ गुड़ है, अगर गुड़ खाएंगे आप यहाँ का, यहाँ पे लोकल मार्केट में 100 रुपए किलो मिलता है, लेकिन आप खाएंगे तो अगर मैं उसका इंटरनेट गया, नेटवर्क गया उसका, आपका आवाज नेटवर्क गया, उसका नेटवर्क गया। ओके ओके, या नवनाथ जी, ओवर टू यू। अनम्यूट नवनाथ जी। बाजरा समझ रहे हैं सर आप? हाँ आपका नेटवर्क गया था, अभी अभी आ रहा है। हाँ बाजरा हाँ, हेलो, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है शशि। शशि सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है चलो नवनाथ जी। चलिए, शशि सर का जो सवाल था ना, उसको मैं थोड़ा सा जेनेरिक मोड में लेके जाऊंगा, कि अभी स्पेसिफिक नहीं जाके जेनेरिक लेके जाऊंगा। करेक्ट। मेरा मानना यह है कि जो भी दुनिया की रिक्वायरमेंट है ना, पूरे दुनिया की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला अगर एरिया जो रहेगा तो है गांव। करेक्ट। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। तो दुनिया में जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसका प्रोड्यूस स्टार्ट होता है गांव से। करेक्ट। तो सारे गांव वालों को मुझे ये मैसेज देना है कि दुनिया में जो भी चलने वाला है, कल चल रहा था, आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा, तो जो जो लगने वाला है ना, उसका स्टार्टिंग गांव से होता है। और ये डेफिनेशन कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कि दुनिया में जब तक आदमी है तब तक खाना खाना पड़ेगा उसको, वो खाना खाना कभी बंद नहीं करेगा। और खाना कहां से बनता है? तो गांव से बनता है। तो अभी हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अभी हम लोगों को ये रिसर्च करना चाहिए कि हमारे जो जनरेशन था, 20 साल पुराने, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, 100 साल पुराने की अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, तो लोगों की जो खाने की आदत थी, खाने का जो प्रोडक्ट था, वो
100 साल पहले अलग था, 40 साल पहले अलग था, आज के डेट में अलग है और 20 साल के बाद अलग होने वाला है। उसका फॉर्म है ना, फॉर्म चेंज हो रहा है। खाना तो हर आदमी खाता है, कोई बाजरा खाएगा, कोई गेहूं खाएगा, कोई राइस खाएगा। उस पे प्रोसेस करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। 40 साल पहले किसी को पिज्जा पता था? किसको बर्गर पता था? नहीं पता था, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाया गया। जैसे कि अभी आपने कुछ ब्रांड्स की बात की, वो ब्रांड्स का एक दिन में बने नहीं बने, वो ब्रांड बनने के लिए सालों सालों दिन बीत जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज के डेट में मेरे पास क्या अवेलेबल है और उसको मैं आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूं। वो सोच सही तरह से अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, एक छोटी सी आइडिया बहुत बड़ा बिजनेस बना देती है। किसी के माइंड में नहीं आया तो वो चीज हम लोगों को करना है। सो अभी आज के डेट में हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी ग्रोइंग कर रहा है दुनिया को, आईटी बूम कर रहा है, सॉफ्टवेयर डिवीजन बूम कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि एफएमसीजी सेगमेंट भी बूम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर भी बूम कर रहा है? दुनिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बूम नहीं कर रहा है। खाली बार बार हम लोग बातें करते कि यार आईटी वाला बंदा है, चेयर पे बैठे काम कर रहा है, चेयर पे बैठे बिजनेस कर रहा है, चेयर पे बैठे पैसा लेके आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। हर जगह पे एफर्ट्स देना पड़ता है, हर जगह पे मेहनत करना पड़ता है, हर जगह पे चैलेंजेस होती है। हम लोगों को उसको देखना पड़ेगा। हमारे आजू बाजू में ही हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है, वो गांव हो या वो शहर हो, हर जगह की सिचुएशन वही होती है जो हम लोग सोचते हैं। सो माय डियर शशि, आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके आजू बाजू में क्या बेस्ट है और उसको आगे जाके हम लोग 20 साल तक उसको किस तरह से हम लोग उसका पोटेंशियल बना सकते हैं। हर एक एरिया की, हर एक ज्योग्राफिकल एरिया की एक छोटी सी ब्यूटी होती है। वो ब्यूटी को अगर हम लोग आगे लेके जाएंगे, जैसे कि जीआई की बातें करते हैं लोग, हर एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए जो उसी एरिया में आता है। सो उसी तरह से हम लोग अगर सोचेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, तो पूरे दुनिया भर में हम हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज, हमारे आजू बाजू में जो डेवलप हो रहा है, जो बन रहा है, आज तक बना नहीं है, उसके ऊपर भी हम लोग सोच सकते हैं। ये सोच ही हमें आगे लेके जाएगी। शशि जी, आप क्या सोच? सॉरी, मैं यस यस अतुल सर, टाइम इज कंसर्न, मुझे पता है अभी। हाँ, मैं एक मिनट के लिए खाली इसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ। बोलिए सर। शशि सर, कुछ चीजें बड़ी होती है, कुछ चीजें छोटी होती है, लेकिन अपने एरिया के, जैसे कि मनोज सर ने भी बताया कि अपने एरिया के ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, तो मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरे एरिया में आपने भी बोला कि 20 साल इसका फ्यूचर क्या है, अपने रूरल का फ्यूचर क्या है, फार्मर लोगों का फ्यूचर क्या रहेगा। तो मेरे यहाँ पे कुछ लोगों ने एक चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए थे कि लेबर प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ अपने खेतों में। तो यहाँ पे 2-3 लोगों ने एक छोटी सी आइडिया एग्जीक्यूट की है। सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक टीम बनाई है उनके यहाँ पे, और वो अभी 1-2-3 साल अच्छे से काम कर रहे हैं। वो टीम बनाते हैं, वो गांव में सभी लोगों को पता है कि इन्होंने टीम बनाई है। वो बोलते हैं प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक पूरा वो मैन पावर उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अभी लोग उनके पास जाके डेट बुक करते हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक मेरा इतना खेती है, इतना एकड़ है, वहां पे मुझे ओनियन का प्लांटेशन करना है, आपकी टीम मुझे बुक करना है। वो बोलते हैं इतना एकड़ है, इतने दिन मेरे पास पानी अवेलेबल रहेगा, तो कितना लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, आप मुझे अवेलेबल करके दो।
वो अपने डायरी पे लिख के लिखता है चलो 5 से 11 आपका खेत बुक हो गया। अभी अलग बिजनेस मॉडल बन गया है। अभी वो अकेला बंदा जाएगा ढूंढने के लिए, अगर उसको 10 लेबर चाहिए तो 10 लेबर 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक अगर उसको 10 लेबर चाहिए तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन वो बंदा अगर एक बंदे के पास जाता है, वो टीम लेके बैठा है, तो वो खाली बोलता है अवेलेबल है, डेट हो गया उसका काम। तो एक बिजनेस मॉडल है। अभी इसको और एक्सपेंशन करना है तो अभी वो खाली मैन पावर पे चल रहा है। कल आप इंस्ट्रूमेंट पावर लेके आओ, उसमें प्लांटेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हार्वेस्टिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप वो खरीद सकते हो टीम टीम को लेके, तो आप पूरा उसको वन स्टॉप सोल्यूशन दे सकते हो, पूरे गांव को दे सकते हो। उसके बाद एक्सपेंशन करके बाजू वाले गांव को भी दे सकते हो। तो एक टीम बनने के बाद और आपके पास इंस्ट्रूमेंट आने आ जाने के बाद भी ये होते जाएगा। तो एक बिजनेस मॉडल हमारे एरिया में अभी तो चल रहा है। तो आप अगर उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इजी भी है। तो ये एक फ्यूचर है अपना, ये थोड़ा मैंने आइडेंटिफाई किया है ऐसा। आई थिंक शशि जी आपको क्लियरिटी मिला रहेगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शशि जी। जी सर, जी सर। मुझे लग रहा है कि खादी ग्रामोद्योग इनके कुछ सब्सिडीज और ये भी शायद रूरल में रहते हैं, राइट अतुल जी? रहते। हाँ, तो उसका भी फायदा शायद हो सकता है। सर यहाँ पे मेन तर बात यह है कि जैसे कि आज के डेट में अगर हम आटे की बात करें, गेहूं की जो जनरली लोग सब लोग यूज करते हैं, तो नो डाउट जब से ये राशन में बंद हुआ था अभी, तो गेहूं का प्राइस अचानक हाइक कर गया था, ठीक है। और इस समय 34 रुपए किलो खुले आटे बिक रहे हैं। मैं नहीं जानता कि पैकिंग वाले आटे कितने रुपए किलो बिक रहे हैं। मैं 45-50 बिक रहे हैं। हाँ, तो घर का 45-50। हाँ, तो घर का गेहूं है तो हम लोग पिसवा कर नहीं खाते हैं। तो अब 34 रुपए किलो वो बिक रहे हैं। लेकिन जब हम बेचने जाएंगे अपना गेहूं, तो वो कितने रुपए जाएगा? 16 रुपए, 17 रुपए। 16-17 रुपए में अरे जाएगा। पिसाई में कितना लगता है? पिसाई में कितना लगता है? 1 से 2 रुपए पैकेजिंग में। लेकिन अगर आप पूरा पैकेजिंग वैकेजिंग सब करें तो लेकिन वो पूरा मार्केट कैप्चर लेकर करके बैठे हुए हैं। उनके बीच में घुसना मतलब अपने आप को बर्बाद करना है, हमको जहां तक लगता है। घूम करके जाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े पड़े हुए हैं उसमें खिलाड़ी। अब क्या हम बताएं? अब मैं 100 कुंटल लेकर के चाहूँ कि मार्केट में घुस जाऊं, तो फिर अब बाजरा है मेरे पास। अभी कोविड में हमने बाजरा, मक्का और चना ये सब मिला करके कुछ बलिया जिले में जो, अब चूंकि कोविड लगा था तो कहीं जाना वाना नहीं था, लेकिन फिर भी चोरी छुपे हमने, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट जो लोग होते रहते हैं सरकारी लोग, वहां पे हमने बेचा था। तो करीब 80-80 रुपए किलो हमने बेचा था, वो मिला करके सब। गेहूं मिलाया था उसमें, चना मिलाया था, बाजरा मिलाया था, ये सब। तो प्रॉफिट तो अच्छा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोविड में के समय हमने कमाया करीब 10-20 हजार रुपए, बहुत छोटे बल्क में किया। लेकिन जब कोविड निकला तो ये क्या हुआ कि बड़े जो व्यापारी थे उसको कैप्चर कर लिए। वो समझ गए, वो लोग भी घूमते रहते हैं कि क्या हो चल रहा है मार्केट। भाई उनके पास बड़े बड़े प्लांट है, जो हम 1 घंटे में 10 किलो पीस, 20 किलो पीसेंगे, वो 1 घंटे में 100 किलो पीस देंगे, मार्केट डाउन कर देंगे सब। ये सब बहुत गांव में है। अब कहते हैं ना कि पूंजीपति बस 100 में एक 100 में नहीं, 1000 में एक आदमी, बाकी लोग सब उसके पीछे लगने वाले हैं। तो यही यहाँ पे है। और मैं भी हूं तो मैं उस पूंजीपति के पीछे ही लगूंगा, मैं सब जानता हूँ। लेकिन अगर मैं सर्वाइव करना शशि जी आपने जो कहा वो ठीक है। और ये सब देहात में ऐसा ही चलता है। ये आपके देहात की बात छोड़ो, महाराष्ट्र में ऐसा चलता है, सब जगह चलता है। तो शायद अब अभी हमने जो भी सवाल आपके जो जवाब था उसका हिसाब से बराबर आपको बताने का प्रयास किया है। और ढेर सारी बातें होगी तो ढेर सारे सवाल पैदा होंगे, और वक्त के हिसाब से हमें आगे जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपका सही में बड़ा थैंक यू बोलूंगा कि आपने अच्छा सवाल पूछा हमारे लिए, और बहुत अच्छी चर्चा यहाँ तक आई। ओवर टू नवना जी। यस डॉक्टर, आपने सही कहा कि हमारा सेशन 7 बजे चालू हुआ था, अभी 9:15 हो गए। आई थिंक किसी ने वॉच के और देखा नहीं रहेगा।
सो लास्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों के हाथ ऊपर आ रहे हैं। चलो खुर्शीद बोलिए, बोलिए खुर्शीद टीपा, जितना बोलिए टाइम बोलिए। आज 2 घंटे से ज्यादा हम लोगों ने बात किया है, तब भी सब लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है सर। हाँ खुर्शीद जी, चलो ये बात अच्छी है नवना जी हमारे लिए। हाँ खुर्शीद जी बताइए। सर हम लोग इंडियन ऑयल के डीलर हैं। हेलो, हाँ Yes, बोलिए ना, sir, बोलिए। हम डीलर हैं और हमारा एक मार्जिन लिमिटेड होता है। मतलब जो है डीलर का कमीशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। उसमें हम लोग जो है ना मार्केट को कस्टमर को थोड़ा सा और फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं एक्स्ट्रा। अगर उसमें रहता है तो हमारा मार्जिन बहुत श्रिंक होकर कम हो जाता है, मतलब श्रिंक ही रहता है, मार्जिन बहुत कम रहता है। तो उसमें से हम किस तरह से कस्टमर के लिए स्कीम्स निकाल रहे, ये थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। शंतनु ओवर टू यू। मैं ऐड करता हूँ सर। हाँ नवना जी ओवर टू यू। खुर्शीद जी, हाँ 2 जी। टाइप का सेलिंग होता है बेसिकली। हाँ, एक सेलिंग होता है कि आप लो मार्जिन रखो, ज्यादा सेल्स करो, और दूसरा होता है कि आप कम सेल्स करो, ज्यादा मार्जिन रखो। अभी आपका जो बिजनेस आता है ना, वो बिजनेस पहले वाले सेगमेंट में आता है कि आपको लो मार्जिन पे ज्यादा सेल करना है। अभी आप ये डीलर मोड में काम कर रहे हो, बराबर है। मतलब आप जो बेचते हो वो एंड कस्टमर को नहीं बेचते हो, बेचने वाले को आप बेचते हो, बराबर है। तो आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, इट डजंट मैटर फॉर यू। आपको आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ाना है तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका डीलर नेटवर्क स्ट्रांग बने, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आओ। उसके लिए मान लीजिएगा कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो और उसमें आपको 1 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, बराबर है, सिंगल रुपीज का मार्जिन मिल रहा है। तो सिंगल रुपीज का मार्जिन लेके आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो, मतलब आपका मार्जिन बन गया 100 रुपए, बराबर है। अभी आपको 1000 रुपए कमाना है तो क्या करना चाहिए? तो आपको 1000 प्रोडक्ट बेचना चाहिए। ये साइकोलॉजी जनरली हर एक के माइंड में आता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपको 1000 प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको 3000 प्रोडक्ट बेचना है, और उसमें आप प्रॉफिट कमाओ 33 पैसा, 34 पैसा। ये साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपका 1000 रुपए का मार्जिन इजीली अचीव होगा। जहां पे आप 100 रुपए कमा रहे थे ना, वहां पे आप 1000 रुपीज कमा सकते हो। आपको गेम समझ में आया? हाँ हाँ समझ में। सर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे हम लोग तो है ना रिटेल का है, इंडियन ऑयल के डीलर है, हम डीजल पेट्रोल बेचते हैं। वहां पे जो है ना ज्यादा जो है वो मतलब जैसे मार्जिन हमको 2 रुपए लीटर पे मिलता है डीजल पे, ठीक है ना। हम उसमें से स्कीम्स वगैरह या ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स वगैरह निकालते तो हमारा मार्जिन बहुत कम हो जाता है। फिर उसमें भी मतलब बहुत लिमिटेड मार्जिन मिलता है हमारे सर को। मैंने तो आपको हम वही बताया कि 2 रुपए का मार्जिन है ना, वो आप 1 रुपए भी लेके आने के बाद 2 रुपए मार्जिन जब आपके पास है, तब अगर आप डेली बेसिस पे 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको डेली बेसिस पे 10,000 नहीं, आपको 20,000 कमाना चाहिए। इसीलिए इसके लिए आपको 2 रुपए का मार्जिन 1 रुपए पे अगर आप लेके आते हो, आप डायरेक्टली तो उसको लेके नहीं आ सकते क्योंकि आपका एग्रीमेंट बन चुका है कंपनी के साथ में, तो आपको 2 रुपए का मार्जिन कंसिस्टेंटली रखना ही है। उसके लिए आप कस्टमर के लिए अदर कोई स्कीम्स लगा सकते हो। मान लीजिएगा आपके पास फ्री नाइट्रोजन फिल होगा, आपके पास फ्री एयर फिल होगा, आपके पास अगर कोई पेट्रोल डालने आता है, डीजल डालने आता है, तो आप कोई एडिशनल स्कीम लगाओ कि अगर आप मेरे पेट्रोल पंप पे आके 500 लीटर का डीजल बाय करते हो तो आपके लिए मेरे पास से टीवी गिफ्ट में मिलेगा, मेरे पास से मोबाइल गिफ्ट मिलेगा। कुछ कंसिस्टेंटली जो रिकरिंग बिजनेस है, जो कभी कभी आता है, वो भी बढ़ाने की कोशिश करो, और जो कंसिस्टेंटली आता है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास से कैसे बाय करे।
उसको डीजल बाय करने के लिए 10 किलोमीटर से अगर वो आता है ना तो आना चाहिए। कुछ ऐसे अलग सोचो, अलग फंडा लेके आ जाओ, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ तो दे रहे हो, लेकिन जब आप दे रहे हो तब आपके पास बिजनेस बन रहा है, और वो बिजनेस में से आपका प्रॉफिट 10,000 से 30,000 तक, 50,000 तक आप लेके जा सकते हो। बड़े बड़े कॉर्पोरेट इसी तरह से बड़े होते हैं सर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। थैंक यू सर। समझ में आया सर? थैंक यू सर। यस, और किसी ने हाथ ऊपर किया था, सुकुरामन जी, प्लीज। Yes, sir. Sir, my name is Ajish. I'm from Bangalore. Actually, my problem is like I want to start a business, but Atul ji, he mentioned like in a farm, like now supplying labors is an idea. So I just want to request you where I can get some different ideas and I can shortlist them with my passion. Could you throw some light, sir? Sir, let me answer your question and rest my friend will answer. आइडिया मांगने से नहीं मिलती, आइडिया खुद की होनी चाहिए। अजीत जी, आपकी आइडिया आपका बिजनेस बढ़ाने वाली है, हमारी आइडिया आपका बिजनेस बढ़ाने वाली नहीं। ओके सर, बट आपका जुनून, आपका पैशन क्या है ये बताइए। आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं ये बताइए। उसके बाद इमीडिएटली मैं बताऊंगा कि बिजनेस क्या करना चाहिए। Okay, क्या sir. है? What I am thinking is like food, na? Like that is a stable kind of business. I would like to enter into that. No problem. We all are professional here, and you want to do something, definitely we are going to help you. But the issue is that किसी से बताने से बिजनेस नहीं करना कभी भी जिंदगी में। जिंदगी में वो जुनून है कि ये मुझे सोने नहीं देता, ये विचार, ये मेरी सोच सोने नहीं देती मेरी, ये सोच मेरी क्या है, ये सोच को मैं बदलाव में लाके मैं व्यवसाय में अगर उसकी उसको ट्रांसफर करूंगा, यस, दैट इज योर बिजनेस माय डियर। हम हमारे अतुल जी बोलो, नवना जी बोलो, शंतनु और मैं बोलो, या कोई भी हमारी अगर हमारे आइडिया बताएंगे तो आइडिया पे मत चलो, और हमें कभी भी कांटेक्ट करो। अभी भी अगर आपका जुनून है, कभी भी हमसे कांटेक्ट करो। अपना कांटेक्ट नंबर तो है ही, टिप से आप जुड़े हैं, नवना जी से हमारे से जुड़े हैं, कभी भी सवाल पूछो, आपको उसी दिन आपको गाइडेंस मिल जाएगा। फिक्र मत करो कि टिप का यही रवैया है आत्मनिर्भर भारत की ओर। हमको हर एक हमारे मेंबर को एक सही सदन उद्योजक बनाना है दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरा जो विश्लेषण है, सुखराम शायद अभी पता, आप क्या बिजनेस करते हैं अभी, प्रेजेंट बिजनेस क्या है आपका? Presently, I am working, sir. I am working in software testing, but like 20 years I have been working, but now I want to start something on my own, but I'm just not able to figure out that. Okay, do one thing, do small market research. What is not there and what is badly required. You want idea, no? Then idea is not that easy. Idea is so simple. Do the market research. What is needed and what is needed badly. What is needed badly. उसकी क्या जरूरत है, कौन सी चीज है कि उसको देना ही है हमें लोगों को, उस पे आप सर्च करो और ये आपका बिजनेस होगा। उसके लिए बाकी हम प्रोफेशनल मेंटर हैं और हमारे शंतनु भी आपसे बात करेंगे। इन्होंने इतना और इन्होंने मांगी आइडिया, तो मुझे लग रहा है कि ये पहली बार मैंने सुना कि कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे आइडिया दे दो, बट दिस इज एक्चुअली बेसिक प्रश्न है। बट मुझे लग रहा है कि जैसे एबीसी एनालिसिस बोलते हैं, मोहित सर उस पर ज्यादा बोल सकते कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। आपको ऑलवेज क्या अट्रैक्ट कर रहा है, मार्केट को ऑलवेज क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको किस बेटर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपका उस पर कंट्रोल कितना है। ये एबीसी एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे से आइडिया लेके अगर कुछ करेंगे तो आप शायद बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद को ही मार्केट सर्वे करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपके एरिया में, आपके स्टेट में आप ज्यादा जाता है, उसमें क्या अलगपन है, उसका यूएसपी क्या है, ये सब ध्यान हुए आपको बिजनेस चालू करना है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि कभी कभी जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसमें भी आप आ सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर
नहीं रहेगा तो आगे जाके आप उसको कैसा इंप्लीमेंट करेंगे ये भी आपको अभी से सोचना पड़ेगा। तो ये आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये तीनों शब्द आप ध्यान में रखें। Okay, sir. Thank you. इसमें And I know that you are working. I know that you are working professional. So it is happening with every working professional. He is blocked with the thoughts. So ये रिमूव करो आपका ब्लॉक का। नवनाथ जी बात करेंगे या नवनाथ जी? इसमें और एक चीज मैं छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। जैसे कि मोहित सर ने बताया कि आपको रिसर्च करना जरूरी है, और जो बाकी की चीजें सर ने जो एक्सप्लेन की है अभी, उसमें ही एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सर आप ऐसी चीज ढूंढो जहां पे पेन होता है। जहां पे पेन होता है ना, वहां पे बिजनेस बनता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कस्टमर का पेन ढूंढने के लिए बोल रहे हो? कस्टमर का पेन, कोई भी पेन आप आइडेंटिफाई करो, कोई भी पेन आइडेंटिफाई करो, वहां पे काम करो, आपको धंधा मिलेगा, आपका बिजनेस मिलेगा, आप अच्छी तरह से प्रॉफिट भी कमा सकते हो। जिसको आप पेन रिलीफ देते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो? सिंपल आंसर, जिस डॉक्टर के पास आप गए, उसने आपको पेन किलर दिया, उसने आपका अजर भी कम नहीं किया, उसने खाली पेन किलर दिया और आपको बहुत अच्छा लगा। उस दिन आप बोलते हो यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैं अगली बार इसी के पास जाऊंगा। कल वापस से दर्द चालू हो गया, अब बोलते हो यार क्या डॉक्टर है, कल तो मुझे ठीक किया, आज वापस से मैं बीमार पड़ गया हूं। आपको जो पेन है ना, उसको परमानेंट सॉल्यूशन देने का डॉक्टर बनना है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी सर्विस के लिए। तब लोग बोलेंगे यार ये सही आदमी। आइडिया ढूंढने से आपको बिजनेस नहीं मिलेगा सर, आप पेन ढूंढने से आपको बिजनेस मिलेगा। आप और पेन नवनाथ जी वो आईटी के हैं, आईटी में इतने पेन्स है, वो आईटी में इतने पेन्स ढूंढ के निकालेंगे, मुझे विश्वास है वो आईटी में अच्छा बिजनेस करेंगे। या वो मास्टरी है, 20 साल में काम कर रहे हैं, तो इसको मालूम है पेन कहाँ है, तो ढूंढ के लाओ ना और आईटी का बिजनेस शुरू करो। हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि जिधर पेन है उधर गेन है। सो मुझे और एक चीज में शायद वो इम्प्लीमेंट हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हम प्रोजेक्ट करते थे अलग अलग कॉलेज में, तो ये यंगस्टर जो रहते ना, इनके माइंड में अपने से ज्यादा आइडियाज थोड़े ज्यादा रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज दे डू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो आप उस पे भी एक तरह से फोकस कर सकते हैं कि जो यंगस्टर है, जो कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट में नहीं है वही वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही वो लेके आने का सोच रहे हैं। तो शायद उधर से आपको कोई आइडिया मिल जाए। अगर आपको आइडिया ढूंढनी ही है और कुछ नया देना है, तो यू कैन कीप इन टच विथ ऑल द यंगस्टर्स वेयर दे डू न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइडियाज, मार्केट के हिसाब से जो मार्केट में नहीं है और आप उनको लानी है, तो शायद उसमें से आपको कुछ आइडिया मिल जाए। बट इट शुड, हाँ अगेन जैसे मोहिते सर बोले, खाली आइडिया लेने से होगा नहीं, मतलब आपको उसमें वो सब आइडिया कैसे मार्केटिंग करके आगे लेके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसको ढालना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बट दिस इज व्हाट, आप यंगस्टर से कांटेक्ट में रहो, यंगस्टर विल गिव लॉट ऑफ आइडियाज, जो कॉलेज में प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें से शायद आप उठा सकते हैं। नितिन सोनी, यस, हम लोग लास्ट सवाल लेंगे। लास्ट सवाल लेंगे। सोनी जी, आपका लास्ट सवाल रहेगा। टाइम इज कंसर्न, अभी 9:30 हो गए। हमारा टाइम एक्चुअली 7 बजे से 8 से 8:30 बजे तक होता है। हम लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, हम लोग सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। तो आज मैं हाँ हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जैसे बिजनेस होते हैं, तो उसमें तो एक तो बायर फाइंडिंग बहुत मतलब मुश्किल होता है, और बायर फाइंडिंग अपन कर भी लेते हैं तो वो मेल का रिप्लाई नहीं करते, और कैसे मतलब है ना इसका सोल्यूशन करे कि जैसे है ना अपने को बायर फाइंडिंग भी हो जाए, वो कन्वीनियंस भी हो जाए। ये मैटर पे थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था सर। कौन से गांव से हैं आप कौन से गांव से हैं आप? मैं बेंगलोर पे हूँ सर वैसे। अच्छा, बेंगलोर से हैं? हाँ, गांव तो जयपुर है पर अतुल बुराड़े सर जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, और वो हर एक एक्सपोर्टर का, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मैं बायर फाइंड कैसे करूं। मैं दिन के 100 ईमेल भी करूं,
तो भी मुझे एक हाँ महीने में हाँ एक आध ईमेल का रिप्लाई आता है, और वो आ भी जाता है तो वो 2-3 कम्युनिकेशन के बाद फ्रॉड निकलता है या फिर कोई काम का नहीं निकलता है। तो सर जी, ये सवाल का जो आंसर है वो हम लोग किस तरह का प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं और हम लोग किस कंपनी को, किस लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि अपने पास जो भी मेथड्स है अवेलेबल, वो बहुत रॉन्ग मेथड्स है। हम लोगों को ये बोला जाता है कि दुनिया भर ईमेल करो, आपको कहीं ना कहीं से रिप्लाई आ जाएगा। ये ठीक है, लेकिन आप अगर 360 डिग्री घूमोगे और हर जगह आप टारगेट करते बैठोगे, कहीं ना कहीं से रिप्लाई आने का प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। चलो कहीं ना कहीं से रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ है, वो वापस फिर से जुड़ेंगे। तब उन्होंने सही कहा। जो बात वो कह रहे हैं ये बात है कि किसी को आप मेल भेज रहे हैं तो मेल किसको भेज रहे हैं, और मेल भेजते समय आप जिसको भेजा है मेल वो अगर सही कंपनी है। यस अतुल, यू केम नो? अतुल, अनम्यूट एंड यू स्पीक योरसेल्फ। यस यस Yeah. यस, सॉरी सर, देयर वाज सम प्रॉब्लम। Yeah. तो एक Go मैं ahead. कह रहा था कि सर अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। अभी सपोज आपके पास फूड प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट में ऑलरेडी देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। नाउ इफ यू वांट टू कम्पीट विद देम, तो हमें आपका यूएसपी लेके आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात रहेगी तो सर, ये कोई हैंडीक्राफ्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी है सर। हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स ज्वेलरी, इमिटेशन जेम्स ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी है, राइट? हाँ, तो हैंडीक्राफ्ट। हाँ, हैंडीक्राफ्ट है। तो सर मेरा ये मानना है कि अभी आपका प्रोडक्ट वहां पे किसी ना किसी शोरूम में रखना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा। अभी अननोन जो है, अभी अननोन पर्सन है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा या फिर आपका ट्राई क्यों करेगा? तो वो ऐसा बंदा ढूंढो जिसको बोलेंगे आपकी ये मेरा शोकेस होना चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फिजिबिलिटी मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की होनी चाहिए। तो ये क्या चीज है जो जो आपको ये अचीव करके देगी, वो चीजें करनी चाहिए। अभी हम लोग आपके इसमें ईमेल करते बैठेंगे और प्रोडक्ट ही उनको देखने को नहीं मिलेगा या फिर इमेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है कि हमें कौन रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसा शंतनु सर ने पहले बोला था कि अभी डिजिटल एनवायरनमेंट बहुत हुआ है। अगर आप आपके प्रोडक्ट के कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो, अच्छे अच्छे इमेजेस बनाते हो, और वो इमेजेस सीधा सोशल मीडिया में बूम करते हो, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई वहां पे लाइक करेगा, व्यू करेगा, आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा और वो आपको मिलेगा। और ये सारे जो मेथड है, इस ये यूटिलाइज करने सबसे बढ़िया मेथड क्या है पता सर? कोई ऐसे बंदे को ढूंढो जो आपके लिए, जो बाहर बैठा हो, आउट ऑफ इंडिया बैठा हो, जिसका खुद का ये बिजनेस हो, उसको बोलो कि मेरे लिए अगर पर्सनल रिलेशन के हिसाब से रिलेशन बनाओ, उसको बातें कर करके उसको बोलो कि मेरा प्रोडक्ट आपके इसमें रखो। आप अगर वो होल्ड कर सकते हो उसका पेमेंट, वो बेचने के बाद अब अगर आपको मिल सकता है, वो रिस्पॉन्स बढ़ाओ वहां पे। सबसे बड़ी चीज है आपका प्रोडक्ट वहां पे शोकेस होना चाहिए। और हैंडीक्राफ्ट को मैंने सर देखे हैं, आजकल सारे एयरपोर्ट्स पे भी जो भी इंटरनेशनल है, उधर भी हैंडीक्राफ्ट के बहुत अलग एक वहां पे स्पेस दिया जाता है, जहाँ पे उनका शो किया जाता है और वो बेचा जाता है। तो एक प्रोडक्ट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी सर यहाँ पे। अभी मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट और जेम्स में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ और उस हिसाब से जाओ। लेकिन ईमेल पे सर 101% काम नहीं बनने वाला, वो चांसेस बहुत कम है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ आपको। थैंक यू अतुल। यस, ओवर टू नवनाथ जी। यस, मुझे लगता है आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव, काफी एक्सप्लेनेटिव एंड लोगों ने पसंद किया है डिस्कशन आज का। सो आप लोगों ने जो आज का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है, पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स,
मैं आपको आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यस, अभी 9:40 हो चुके हैं, तब भी सारे पार्टिसिपेंट्स का यही मुझे लुकआउट देख रहा है कि और 1 घंटा हमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों, मुझे आज सॉरी कहना पड़ रहा है कि हम यहाँ से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। टाइम इज कंसर्न। कोई भी चीज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस के चैलेंजेस और उसके अपॉर्चुनिटीज, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस से इंडस्ट्री इनसाइट्स के ये सीरीज ऑफ इंडस्ट्री इनसाइट्स में हम लोग इसको वापस से डिस्कशन करने के लिए लेके आएंगे, नो प्रॉब्लम। आपके कोई भी सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाइड करने की, आपकी सोच को सेटिस्फाइड करने की। सो आज के लिए मैं यहाँ पे स्वल्पविराम लेना चाहता हूँ। इसका हमें कंटिन्यू करना है आगे, लेकिन आज का डे को खत्म करने से पहले मैं एक सोच आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सारे लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं। जब हम लोगों को व्यापार करना है तो किस तरह से करना चाहिए, मुझे एक छोटा सा कोट आपको बोलना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर लोग आपको पसंद करेंगे, तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर वे आपके ऊपर भरोसा करेंगे, तो वो आपके साथ व्यापार जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, लोगों का भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। जब तक लोगों का भरोसा आपके ऊपर नहीं होता है, तब तक लोग आपकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों के भरोसे के ऊपर खड़े होने की जिम्मेदारी हम सब की है। मुझे अच्छा कस्टमर्स चाहिए, तो कस्टमर का मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो भरोसा जब तक है, तब तक आपका कस्टमर आपके साथ रहेगा। इसी कोट के साथ आज मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। आप लोगों ने जो समय दिया, जो टाइम दिया, आपका कंट्रीब्यूशन, पैनलिस्ट हो या पार्टिसिपेंट्स हो, आप सब लोगों का मैं दिल से वापस से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जरूर मिलेंगे 26 जनवरी को दोपहर को 4 बजे, गुरुवार है। 26 जनवरी को हम लोग सेशन ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेशनल डे है, हमारा देश का डे है। उस डे पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, वो टैक्सेशन सिस्टम नेशन के बिल्डिंग के लिए किस तरह से काम में आता है, हमारा कंट्रीब्यूशन देश के बिल्डिंग में कैसे आता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप सब लोग जरूर आइएगा जूम के ऊपर। ऑनलाइन ही हम लोग ये डिस्कशन रख रहे हैं। 26 जनवरी दोपहर को 4 बजे आप सब लोगों को लाइव आना है। आपके पास जूम की लिंक मिलेगी 26 जनवरी को सुबह। सो तब तक हम लोग रजा लेते हैं आपकी, और आपसे धन्यवाद करते समय आज यहीं पे रुकना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।